Currently, we'll start. Can we start? Yes, start करो सर. Okay, sir. Okay. Good afternoon to all respected members of ICAI. On behalf of ICAI Jaipur branch, I, Saurabh Sharma, welcomes all the members in the virtual webinar on the topic of 360-degree analysis of GST provision for capital goods, organized by the Jaipur branch of ICAI. Our today's special guest for providing a special address on the topic is CA Sunil Bhargav sir. Sunil Bhargav sir is a founder and senior partner of S. Bhargav and Associates. Sir has been in practice from 3 to 4 decades and having approx 38 years of experience in the field of concurrent audit, management audit, and GST, VAT, and other professional core fields. Without wasting much time, I would privilege to invite Sunil sir for sharing his professional knowledge and motivating us. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Saurabh. The distinguished speaker, dear Akshay. Well, this seminar is one in a series. When GST law came into force, even prior to the GST law coming into force, the Institute of Chartered Accountants at the central level, the council level, took initiative to take this to the masses, not only the chartered accountants. I know for sure that we have spent more than 5 lakh hours on training of the chartered accountants during this period of 3 years. The current scenario, economic scenario, definitely is challenging, unprecedented. Some in the light of structural economic changes made by the central government, including GST, of course, and a major proportion due to the pandemic, which has stalled all the progress or the economic activity, at least for 3 years, and now it is continuously picking up. What we virtually saw in the last 6 months or 8 months was that a vicious cycle of economic activities started. The demands just vanished, or they were too low. In absence of demand, no production was possible, even after the lockdown was opened. So whatever inventories were there, they kept on piling up. So the cash flow was low because people started not paying. So payment defaults were there. So lower order performances were there because the payment was not forthcoming, therefore no dispatches were being made. Then it started into a cash crunch, actual cash crunch, leading again to a low purchase power. That means low demand. Now, in the light of all this, we have seen continuous changes in the GST law. Of course, 1st July 17 was a historic radical change. And this law, GST law, came in by a consensus of all states. It was not something which was passed by the parliament and imposed. A consensus from amongst the states was built on the provisions, rates, timing, etc. Even after launch of this on July 1st, 17, this is continuously functioning democratically. There is a council, GST Council, which meets very, very frequently and which is endeavoring continuously to ease the difficulties of the taxpayers. In all spheres of the GST law, whenever there is a problem raised or a difficulty arises to the taxpayers, and of course,
the practitioners, it is addressed and a suitable relief is granted. When this law came into force, it came both as a challenge and an opportunity. Now, challenge was that it was so difficult for the common traders, small businessmen to understand the intricacies. So we had a dual role. One, to make people understand, the taxpayers understand, and second, to perform all their obligations. So this dual responsibility came, and I'm very happy that our profession has risen to the occasion, and with continuous seminars, webinars, from the pre-GST period, we have been updating our professional brothers, and we have come out with flying colors. Now, this is the first law which was so early tested for the constitutional validity. The moment it came in, within 3-4 months, its constitutional validity was challenged. And the Supreme Court said that the constitutional validity is there, and therefore this law was completely valid. This brings one India and one market concept. So that was a good beginning. Now, what happened in the council meetings? So in each meeting, there were simplifications, reliefs granted in terms of rates, in terms of filing formats, in terms of procedures, in terms of time frame. Initially, it was every month, all invoices. So many details were being filed. Now they have been curtailed drastically, and the procedures also have been simplified, and it is continuously being simplified. It's not that whatever we have done is a full stop. It continuously keeps on revising for the benefit. So this is the only law which is flexible, because the council is revising it every time. It is the only law which gives more and more and more relief as and when the issues come up before them. Now, I know Akshay is a brilliant speaker as well as a knowledgeable person, and he will deal with most of the problems and details of the classifications of the capital goods and the input integracies. All those he will deal with. I'm just touching upon a couple of issues. Now, the classification is made in a very simple manner. There is tax paid, there is zero rated goods, there are exempted goods, there are excluded goods like land, towers, pipelines, etc., etc. Then there are goods on which there are reverse charges. There are restricted goods like motor vehicle, depending upon what use it is. There are certain items in which no ITC is available, and there are some items on which still the state subject is there, the VAT is applicable. Now, all these classifications and details of this, Akshay will definitely carry you through during this thing. There are a couple of issues which are very interesting in the whole understanding of the capital goods. Now, what happens if an invoice of the capital goods is made and the delivery is to be made over a period of 3 years? Generally, all capital goods do not come in one thing. So it is a series of deliveries. So when does your right arise? When is the capital assets complete? It is only when it arrives in the premises and is ready to use.
What happens if the payment of the invoices are not made? The goods have arrived, everything comes in, but the payment is not made within 180 days. So all those issues, I'm sure Akshay will take up. Should import tax be part of the cost? Now, there are some accountants who take that as a cost. Some would take a credit and not take it as a cost. When it is taken as a cost and depreciation is charged, what happens to the input tax? It is not allowed. But when it is not taken as a cost and no depreciation is charged on that amount of tax, then of course, it is more simple. Now, I mentioned the supplier doesn't bother to load the information, upload the information. Now, what happens in that situation? So there is a big restriction. You get only 10%. Now, what is the jurisprudence going on that? Is there a positive response from the government? And then whether the non-compete fees, how do you treat that? Because there are hefty sums paid to the chief executives or very senior employees, running into crores. Now, for tax purposes, it could be treated differently, income tax purposes. But for GST purposes, of course, there will be different treatment. Now, the legal jurisprudence is very slowly moving. It's a new law. It's infant. The jurisprudence is emerging. And generally, all of us being chartered accountants, we all know the jurisprudence on cost of capital goods and what constitute capital goods is very old. Now, how much does that apply on the GST law? For example, the lifts. Lift could be a part of a plant and machinery itself, or is it a part of the building? Now, there is a Triveni engineering case. The Supreme Court ruled it is a part of the building. So these, like demo vehicles, what happens to the demo vehicles? Are the capital goods? How do you treat the GST? Because when you sell it for a lower amount, how do you get the input credit? Because you have an input credit when it was new. When you sell it, the GST is low because the value becomes too low. All these are new emerging jurisprudence, which I am very sure the learned speaker would deal with, and you would also have certain queries on that. One very good thing about the GST law is that it is trying to rope in all economic activities into the recorded activities. So there is a big catch on the cash transactions, unrecorded transactions, with all the e-way bills and the recordings. Now, the results have started coming. Pre-GST, the total collections of the indirect taxes was almost about 60,000 crores, all states and center included. Now it is, even in this month, it is 1,05,000 crores. And what is expected is by March, it should be not less than 1,40,000 crores. Now it is multiplying. So it is also showing up in the budget sizes that is increasing day by day, and the activities for development that is going on day by day. I'm sure all these aspects will be dealt with, and you will be immensely benefited by today's webinar and Akshay's speech. For concluding, I would say that the challenges keep coming to us. This is also a big challenge. We learn something, we keep on unlearning. This has become a way of life.
Because what I read during my CA examinations is not valid today. So unless I unlearn what I learned there and learn from people like Akshay, what are the intricacies of the new laws that are coming, the infant laws that are coming, and how do we apply, I think we are not justifying our being a professional. Now, only those who convert the challenges into opportunities and opportunities into success, they are the leaders. They are the winners. They create an aura for themselves, and they are the torch bearers and interpreters of the law. They are the people who set up the pace for success. I wish all those who are attending this webinar lots of courage, lots of luck to be one of the torch bearers. Thank you so much. Thank you so much, Sunil sir, for sharing your professional knowledge and experience with us. Now moving forward, as we all know, our today's speaker for this webinar is CA Akshay Kumar Jain sir, who is designated partner at Akshay Kumar Jain & Company LLP, and he is a fellow member of ICAI and having more than 5 years of experience in the field of indirect tax, internal audits, GST, custom, VAT, service tax, and other professional core fields. He is also a regular faculty member at ICAI, ICSI, and other professional bodies. He is associated with the various industry associations, professional associations, and social organizations, and serving the community at large. Without wasting much time, I would privilege to invite Akshay sir for the session. One more thing, if member have any query, can send their query in the chat box. After the session, we will take every query one by one. Thank you. Over to you, sir. Thanks, Saurabh bhai, for briefing my profile, and thanks CA Sunil Bhargava sir. सर ने ऑलमोस्ट सारे इश्यूज जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ मेरा काम इजी कर दिया और सारे इश्यूज जो हैं ऑलरेडी हमारे साथ डिस्कस कर लिए. Thanks to our young and dynamic chairman CA Anil Yadav sir and ever smiling secretary CA Kuldeep Gupta ji जो भी नहीं है, for providing me the opportunity to speak in front of my co-members of our mother body ICI. Special thanks to Sri Surendra Agarwal ji, past secretary ICI Jaipur, for suggesting us the wonderful topic that is 360-degree analysis of GST provisions for capital goods. And last but not least, thanks to managing committee of our Jaipur branch for doing wonderful activities back to back. And अभी next जो 8 तारीख को साइकिल का इवेंट होने वाला है, शायद नहीं ज़्यादा सर आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करना भूल गए, तो मैं अपनी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग वो अच्छा प्रोग्राम है वो अटेंड करें. एंड जिस तरह से जयपुर ब्रांच प्रोग्राम कर रही है, मतलब डेली बेसिस पे, मेरे को कल बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ा यकीन था मुझे कल अनिल सर का एक मैसेज आया कि करवा चौथ का फंक्शन भी ब्रांच की तरफ से करा जाए. बट अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज नहीं आया. बट पूरी उम्मीद कि अनिल सर जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं वो शायद छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी इवेंट हो, वो मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. तो sharing today's PPT. Sir, presentation is visible or not? Yes, visible actually. Perfect. ओके, तो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 360-degree एनालिसिस ऑफ जीएसटी प्रोविजन फॉर कैपिटल गुड्स. जब टॉपिक सजेस्ट किया ब्रांच की तरफ से, थोड़ा सिलेंडर की तरफ से कि हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा कि ऐसा क्या होगा जो 2 hours में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. बट जैसे जैसे रीडिंग करता गया तो अब लग रहा है कि 2 hours भी कम है फॉर डिस्कशन ऑन दिस वंडरफुल टॉपिक, राइट. So, before starting, Anil sir, second slide is visible or not? तो थोड़ा माइक के पास आ जाइए, थोड़ा आपका माइक्रोफोन थोड़ा दूर रहता है.
ओके, आपकी आवाज वन सेकेंड। ओके, सोना भाई सेकंड स्लाइड दिख रहा है अभी? हाँ सर, पीपीटी शो हो रही है आपकी। सेकंड स्लाइड पे हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन द टॉपिक, एक बार जो किसी भी सेशन को लेने से पहले मैं 2-3 मिनट ये स्लाइड डिस्कस करता हूँ। हो सकता है यदि मैंने पहले किसी ने सेशन अटेंड किया हो तो स्लाइड ऑलरेडी देखा हो, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस दिस। जीएसटी में किसी भी हम लोग कैपिटल गुड्स आने से पहले इस पर्टिकुलर स्लाइड को डिस्कस करेंगे। जीएसटी में किसी भी ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं, जैसे अभी भार्गव सर डिस्कस कर रहे थे कि डेमो कार्ड पे क्या होगा, या फिर काफी सारे ट्रांजेक्शन हमने डिस्कस किए। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए जीएसटी की वैल्यूएशन रेट, आईटीसी, एग्जेम्पशन रेशियो, काफी सारे इश्यूज होते हैं जीएसटी में। बट किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी की लेवी से लेके और पेमेंट तक का प्रोसेस क्या होता है, एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग को सबको पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, मिल्क के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, और अगेन हम लोग को पता है कि लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बराबर। तो हम लोग को ये भी पता है लीटर के ऊपर जीएसटी नहीं है, हम लोग को ये भी पता है सिक्योरिटीज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, बराबर है। हम लोग को काफी सारी कुछ चीजें पता है, आईटीसी किस पे मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा। तो ये मैं एक प्रोसेस आपको सजेस्ट करूंगा जीएसटी में किसी भी ट्रांजेक्शन के फ्लो को जानने के लिए, किसी भी क्वेरी का आंसर निकालने के लिए हम लोग को ये स्टेप जरूर फॉलो करना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम लेवी, किसी भी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कब होती है, सबसे पहले हम देखते हैं उसके ऊपर एक्ट की लेवी, बराबर है। तो इवन चाहे जीएसटी एक्ट हो, चाहे रेरा एक्ट हो, चाहे बेनामी हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, सबसे पहले हम उसके एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। जैसे सेक्शन 9 लेवी, हमको यहाँ से जीएसटी भी यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करने पे पता लगता है कि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर है, उसकी सप्लाई के ऊपर, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसटी की किसी भी ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। सेक्शन 9 पे हम लोग जाएंगे, उस पर देखेंगे कि जीएसटी लगेगा, वहां पे लिखा है गुड्स और सर्विस की सप्लाई होती है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हमको ये देखना पड़ेगा कि वो गुड्स है कि सर्विस है, बराबर। तो गुड्स की डेफिनेशन 252 में लिखी है, सर्विस की डेफिनेशन 2102 में लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं गुड्स और सर्विस है कि उसकी सप्लाई भी हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए हम सेक्शन 7 देखते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं गुड्स सेक्शन 9 की लेवी से लीकर को बाहर कर दिया जाता है, बराबर है। उसके बाद सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल को सेक्शन 9 की बाहर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सप्लाई है क्या नहीं है, कि मतलब फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो ट्रांजेक्शन है या नहीं है, उसमें कंसिडरेशन मिला कि नहीं मिला, वो सप्लाई कैसे दिखा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड्स और सर्विस भी और सप्लाई भी है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि ट्रांजेक्शन इस पर्टिकुलर लेवी सेक्शन में आते तो टर्नओवर से ऊपर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए गुड्स के केस में जो है वो है 40 लाख और सर्विस के केस में 20 लाख रुपए। यदि इस पर्टिकुलर लिमिट से वो क्रॉस करता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हम लोग ये देखते हैं कि वो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में तो कवर नहीं है। तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन गुड्स के केस में रहेगा 2/2017, सर्विस के केस में रहेगा 12/2017। वहां जाके हम लोग देखते हैं यदि वो एग्जेम्पशन में कवर है तो अगेन हम लोग जीएसटी के दायरे से बाहर आते हैं। उसके बाद यदि हम लोग सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, गुड्स की, सर्विस की, सप्लाई की, एग्जेम्पशन से कवर नहीं है, तो एग्जेम्पशन देना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। फिर हम देखते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। ये सब जानने के बाद में इस ट्रांजेक्शन के हम आउटपुट टेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आईटीसी, जैसे 16 में लिखा हुआ है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं उस सप्लाई से पैसा हम लोग को इनपुट मिल रहा है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आईटीसी की जो सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, आईटीसी सेटअप करने के बाद में हम लोग पेमेंट पे जाते हैं। और पेमेंट हम सबको होता है कि हर महीने का पेमेंट हम अगले महीने की 22 और 24 को करते हैं टीजी के साथ में, बराबर। पेमेंट करने के बाद में फिर एनुअल रिटर्न जो भी 17-18 का होगा, उसके बाद में भी डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट होता है ऑडिट का। तो किसी भी ट्रांजेक्शन की हम लोग जिस पर्टिकुलर फ्लो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवी एंड विद आईटीसी, राइट।
तो ये पूरा जीएसटी इसी के इर्द गिर्द घूमता है, बराबर है। हमने अभी पेनल्टी वाले प्रोविजन पे यहाँ पे टच नहीं करा, मैं अभी बात करूँ जीएसटी लगने से लेके जीएसटी का पेमेंट तक सीधे तक, बराबर। उसके बाद में ऑडिट होगा, पेनल्टी स्क्रूटनी जैसी सेपरेट टॉपिक है। तो ये स्टेप हम लोग यदि किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए फॉलो करें तो बड़ा इजी हो जाता है हमको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की पूरी गहराई तक जाने में, बराबर। चलिए ये हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा कैपिटल गुड्स की, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक वही है। आपसे काफी तरह के सवाल होंगे, जो हमने भी बताया हमारे हमने कि कुछ तरह के सवाल ऐसे होंगे कि क्या कैपिटल गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लगेगा क्या, या कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ सवाल इस तरह से होंगे, मैंने कैपिटल गुड्स हमने खरीदा, मैंने उसको पर्सनल यूज में ले लिया, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कैपिटल गुड्स कोई अलग तरह का गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है, किसी के लिए कैपिटल गुड्स है किसी के लिए नॉर्मल गुड्स है। क्या मैं पहले अनरजिस्टर्ड करता फिर रजिस्टर्ड में आ गया तो क्या मेरे को आईटीसी मिलेगा क्या। जोबर के केस में क्या होगा, गुड्स जैसे भाई ने बताया गुड्स मेरे को मिला नहीं, सीधा जोबर का जो कमांडर में आ गया, तो क्या उस पर्टिकुलर केस में मेरे को आईटीसी मिलेगा क्या। क्या मोटर का जिसके ऊपर मेरे को आईटीसी 17 ब्लॉक है उसको बेचने पे मेरे को आईटीसी मिलेगा क्या। बिफोर जीएसटी से पहले मैंने कुछ कैपिटल गुड्स खरीदा था, अभी बाद में मैंने उसको बेचा, क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा क्या। क्या मैं रेगुलर से कंपोजिशन में चल गया, कंपोजिशन से रेगुलर आ गया, उस केस में क्या होगा। क्या मैं 50% एग्जाम से बेच रहा हूँ, 50% टैक्सेबल बेच रहा हूँ, उस केस में क्या होगा। तो ऑलमोस्ट और सारे जो क्वेरीज हैं हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे बाय कंसिडरिंग ऑल दो सजेशन बाय वैल्यू। तो सबसे पहले मैं बात करूं कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स को जब मैंने एक्ट में इसको पढ़ना स्टार्ट किया, राइट, तो मैंने भी हमेशा जैसा आप लोग पढ़ते उसी तरह से मैंने पढ़ा, पर स्पेसिफिकली जब टॉपिक एलोकेट हुआ तो मैंने तो कुछ अलग तरीके का एनालिसिस करने की कोशिश करी, राइट। तो कैपिटल गुड्स को जब मैंने वर्ड को यूज करके वो जो कंट्रोल फाइलिंग मैंने करा सीजीएसटी एक्ट पे में गया, तो मेरे को 37 टाइम्स कैपिटल गुड्स के नाम से वर्ड मिला, जो 37 बार एक्ट में यूज हुआ है। और जब मैंने रूल्स में जाके काम किया तो 57 टाइम्स मेरे को रूल्स में जाके कैपिटल गुड्स नाम से ये शब्द मिला, बराबर है। चलिए उन सारे शब्द को मैं कंसीडरिंग करते हुए हम लोग आगे के सारे प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाया है, प्रेजेंटेशन इस तरह से बनाया है क्योंकि हम लोग जब कैपिटल गुड्स को डिस्कस कर रहे हैं तो मोर और लेस हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहली, कैपिटल गुड्स खरीदने पर, कैपिटल गुड्स खरीदने पर मेरे को इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो ऐसी कौन सी कंडीशन से वो जाके रिवर्स होगा। पहला हमारा डिस्कशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा। दूसरा हमारा डिस्कशन होगा कि क्या कैपिटल गुड्स को बेचने पर भी कोई टैक्स लगेगा क्या, यदि मैंने इनपुट लिया है, यदि मैंने इनपुट नहीं लिया। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कहां से, जब कैपिटल गुड्स मैंने खरीदा है और वो मेरे को पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जानना है कि इनपुट कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस पर्टिकुलर कौन से कैसे जैसे हैं जहाँ पर उसको रिवर्स मेरे को करना पड़ेगा, बराबर। तो कैपिटल गुड्स की हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। कैपिटल गुड्स को जीएसटी एक्ट में इस तरह से डिफाइन करा गया है कि कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट and which are used or intentionally used in the course of furtherance of business, बराबर। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन में दिया है कि कैपिटल गुड्स का मतलब वो गुड्स है जिसकी वैल्यू आपने बुक्स में कैपिटलाइज करी है, मतलब वो आपके असेट साइड में शो हो रहा है और जिस पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम करी है, बराबर है। और वो आपके बिजनेस में वो पर्टिकुलर कैपिटल असेट कैपिटल गुड्स काम आने वाली है। तो यहाँ पर समराइज में इसको करूँ कि जो भी आपकी बैलेंस शीट में, जो भी असेट साइड में, जो भी आपके जो जिसको भी आपने कैपिटलाइज किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाला है खर्चों को और आपने कैपिटलाइज किया बाय कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा अपन इनकम टैक्स कंपनी जो भी हमारे एस जो भी हमारे अकाउंटिंग रूल्स बोलते हैं उस अकॉर्डिंग हमने जो कैपिटलाइज जिन चीजों को किया है उस पर्टिकुलर, क्योंकि जीएसटी ने ये नहीं बताया हमें कि हमको किस चीज को कैपिटलाइज करना है, किसको नहीं करना है। जीएसटी ने बड़ा सिंपल सा ये बोला है कि आपने जिस चीज को उसमें कैपिटलाइज किया है और आपने आईटीसी क्लेम करी है और आप उसको बिजनेस में काम में लेने वाले हो, वो पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स है। कैपिटलाइज करना कि नहीं करना, कैसे करना है, वो अगर जीएसटी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर साइलेंट है। वो हमको जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब हम लोग रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि जब हमारी किसी भी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हुआ, राइट,
जिसको हम लोग जनरली कैपिटलाइज करते हैं, या हमारे जब हमको लगता है, मैं समराइज करूँ थोड़ा सा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते जाएंगे, हमारा क्या बोलते हैं कि हमारा को इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, बराबर है। उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग जो है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, बराबर है। तो जीएसटी यहाँ पर साइलेंट है कि किसको कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना, बट वो बोलता है कि आपके असेट साइड में आनी चाहिए और आप लोग उसके ऊपर आईटीसी क्लेम करनी चाहिए और वो आपके बिजनेस में काम आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है, डेफिनेशन को पढ़ने से ये लगता है कि कैपिटल गुड्स उसी को बोला गया है जब आईटीसी क्लेम करिए, क्योंकि आप जब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां ये लिखा है कैपिटल गुड्स मीन गुड्स द वैल्यू व्हिच कैपिटल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बजट क्लेमिंग इन द आईटीसी। तो पहला सवाल ये कि क्या कैपिटल गुड्स उसी को बोलेंगे जहां पे आईटीसी क्लेम करिए, यदि हमने आईटीसी क्लेम करिए तो कैपिटल गुड्स उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। चलिए एक बार इस पर्टिकुलर सवाल को क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल का जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम लोग कैपिटल गुड्स बेचने जाएंगे, वहां पर हम लोग इस सवाल की जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसको वापस वहां से डिस्कस करेंगे। बट जब एक नोट ऐसा भी है कि जिस पर मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा हूँ वो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग एक बार स्टॉप करके अगेन एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गुड्स की मैं बात करूं तो गुड्स में एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो बाय डिफॉल्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, बराबर। तो इन समरी कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में वो आएगा जो हमारे एसेट साइड में बोल रहा है और हमने इसका आईटीसी क्लेम करिए और हमारे बिजनेस से काम आने वाला है। चलिए दूसरा सवाल ये आता है कि चलिए हमने मान लिया कि कैपिटल गुड्स जीएसटी में कुछ नहीं लिखा है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते टाइम ध्यान रखता हूँ कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैपिटलाइज होगा, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रेवेन्यू जाएगा, हमको ये पता चल गया पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कैपिटलाइज होगा, तो हमको आईटीसी कब मिलेगा। तो अगर आईटीसी लेने का कंडीशन भाई जो नॉर्मल आईटीसी लेने का है, हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स और सर्विस बिक्री हो जाना चाहिए, और अगेन जो सप्लायर है वो टैक्स पे कर रहे हैं, रिटर्न फाइलिंग होनी चाहिए। तो 4 कंडीशन 16 दो में दीजिए, वही कंडीशन कैपिटल गुड्स में एप्लीकेबल होती है। अब एक सवाल एक और आता है कि कैपिटल गुड्स में क्या कोई एडिशनल कंडीशन भी दी हुई है कि मेरे को जैसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने अपने मैं लैपटॉप बेचने का मेरा व्यापार है, मैंने लैपटॉप खरीदे और लैपटॉप बेचता हूँ, बराबर है। तो जो भी लैपटॉप खरीदता हूँ तो मैं उसके लिए दो की कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मेरे पास लैपटॉप रिसीव हो जानी चाहिए मेरे पास, और सामने वाला रिटर्न फाइल करके टैक्स पे हो जाए। लेकिन क्या कैपिटल गुड्स में इस कंडीशन के साथ कुछ और कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ता है क्या, बराबर है। तो एक सेक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 वो ये बोलता है कि यदि wherever registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of the capital goods and plant and machinery under the provision of the income tax act 1961, the input tax taken on the tax component shall not be allowed, बराबर है। तो 16 क्या बोलता है कि यदि आपने किसी कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स पे उस डेप्रिसिएशन लेने के बाद में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैंने असेट खरीदी 100 रुपए की और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10 रुपए का जीएसटी पे कर दिया है, 110 रुपए का मेरे पास वो कैपिटल असेट आया। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप का डीलर हूँ और मैंने कुछ ऐसा सामान फर्नीचर मैंने खरीदा 100 रुपए का, उसके बाद 10 रुपए जीएसटी पे कर दिया है, तो 110 रुपए में कॉस्ट पड़ा। तो यहाँ पर यदि मेरे को क्योंकि वो फर्नीचर मैंने लगाया बिजनेस में, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में काम आने वाला है, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 10 रुपए का आईटीसी क्लेम करूंगा। और जैसे ही मैंने 10 रुपए का आईटीसी क्लेम किया तो मैं क्या अकाउंटिंग एंट्री करूंगा, असेट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू पार्टी। तो यहाँ पर मैं आईटीसी को सेपरेट करके यहाँ पे 100 रुपए का भी डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, 10 रुपए से नहीं करूंगा। लेकिन यदि डीलर ये बोलता है कि नहीं मेरे को आईटीसी क्लेम नहीं करना, मेरे को डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, तो वहां पर वो 100 प्लस 110 रुपए से किस असेट को कैलकुलेट करेगा और 110 रुपए पर ही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा और 10 रुपए का आईटीसी क्लेम। तो यहाँ पर आप दोनों काम नहीं कर सकते, या तो आप 100 रुपए से अकाउंटिंग एंट्री करके 10 रुपए का आईटीसी लो, या फिर आपने 110 रुपए की अकाउंटिंग पूरे बुक्स में डेबिट करिए, तो आप यहाँ आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो सर ने स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि डेप्रिसिएशन वाले एक सवाल है, whether the establishment can avail the benefit of input tax credit in depreciation of the tax component of the capital and plant machinery। क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन दोनों चीजों को एक साथ बेनिफिट ले सकता है? बिल्कुल नहीं, या तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है या फिर वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये उसका चॉइस है। अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि आप आईटीसी किसी चीज पे कैपिटल गुड्स पे क्लेम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको 10 रुपए का ही नुकसान नहीं है, आपको 60 रुपए का नुकसान है। वो ऐसा कैसे
क्योंकि यदि कोई एसएससी जो है वो इनकम वो 30% स्लैब में है, तो कहीं ना कहीं वो 10 रुपए का खर्चा आपकी बुक्स में यदि वो डेबिट हो रहा है डेप्रेशन के नाम से, तो कहीं ना कहीं आपके 3 रुपए की भी 3 से 4 रुपए की भी इनकम टैक्स की सेविंग हो रही है। तो स्टेप फॉरवर्ड कैपिटल गुड्स का आप यदि जो आईपीसी है आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, डेप्रेशन क्लेम कर रहे हो, तो 10 रुपए का नुकसान नहीं है यहाँ पे, वो आपके जो टैक्स हटाने के बाद में वही पर्टिकुलर अमाउंट का नुकसान है, बराबर है। चलिए एक सवाल आता है कि क्या कैपिटल गुड्स, क्योंकि पुराने कानून में ऐसा होता था एक्साइज के टाइम पर कि जिस समय वो एक्साइज जिस समय वो कैपिटल गुड्स हम लोग खरीदते थे तो 50% की इनपुट उस साल मिलती थी और 50% की इनपुट नेक्स्ट ईयर मिलती थी। तो सवाल आया कि कैपिटल गुड्स में आज भी जीएसटी कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कैपिटल गुड्स की इनपुट एक साथ में मिले और 50-50% में मिले, बिल्कुल नहीं। जिस जिस समय आपने कंडीशन 16 की फुलफिल कर ली, आपने आपके पास इनवॉइस है, आपको कैपिटल गुड्स रिसीव हो गया और आपने उस पर्टिकुलर असेट्स को कैपिटलाइज कर दिया, आपने डेप्रेशन क्लेम नहीं किया, तो आप उसी साल में उसका पूरा इक्विटी क्लेम कर सकते हैं। तो एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप खरीदा, जनरली कंपनी में होता है, आपने लैपटॉप खरीदे, फोन खरीदे, आपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिए, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज का बिल्कुल आप आईपीसी क्लेम पर कर पाओगे। यहाँ पर आपने मोबाइल और लैपटॉप जो है वो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में आ रहा है और वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आ रहा है, तो बिल्कुल इससे कोई भी डिनाई नहीं है। आप जो भी मोबाइल लैपटॉप है जिसके ऊपर आप डेप्रेशन क्लेम कर रहे हैं, आप उसका उस पर आईपीसी क्लेम कर सकते हैं। फिर ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल असेट्स क्या है जीएसटी की नजर में और किस कंडीशन को कंप्लाई करने के बाद में मैं आईपीसी को यूटिलाइज कर सकता हूँ, बराबर है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक जीएसटी में डेफिनेशन है इनपुट। इनपुट की डेफिनेशन जब मैं पढ़ता हूँ तो इनपुट वहां पे लिखा हुआ है, इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। तो इनपुट की डेफिनेशन जब मैं पढ़ता हूँ तो वहां पे कैपिटल गुड्स को बाहर किया हुआ है। ये डेफिनेशन में कैपिटल गुड्स बाहर करने से जो इम्पैक्ट क्या हो रहा है हम लोग अब वो डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज अब एक जो अब एक सवाल आता है यहाँ पर, जनरली आपके पास कई बार क्लाइंट्स आते होंगे और वो पूछते होंगे कि मैं पहले नॉर्मल स्कीम, पहले मैं अभी सर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और बिजनेस स्टार्ट करने में क्या मेरे को आज से जीएसटी नंबर लेना चाहिए या मेरे को कुछ समय का वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 6 से 8 महीने बाद मेरा जीएसटी का टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर हो जाए, बराबर है। तो वहां पर आपका जो आंसर है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। क्यों कि यदि कोई नया व्यापारी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर साल भर में बढ़ जाएगा, 6 महीने में बढ़ जाएगा, तो किसी भी व्यापारी के द्वारा जो बिजनेस है, किसी भी व्यापारी द्वारा जो जब वो स्टार्ट करता है तो वो मेजर खर्चा करता है कैपिटल गुड्स के ऊपर। वो फर्नीचर भी खरीदेगा, वो लैपटॉप भी खरीदेगा, मोबाइल भी खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं उस आईपीसी को ध्यान में हमको रखना पड़ता है। तो हम लोग अभी एक डीलर की बात कर रहे हैं, ऐसे डीलर की जो कि रेगुलर स्कीम में था और वो अभी कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है। और एक ऐसे डीलर की जो टैक्सेबल में था जो एग्जेम्प्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक सवाल आता है, एक व्यापारी आपके पास आया, आपने उसको सजेशन दिया, बने एक काम करते हैं कि आपको कंपोजिशन स्कीम में भी अप्लाई करनी है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप अपना जीएसटी नंबर लो और जीएसटी नंबर लेकर रेगुलर स्कीम में आ जाओ। क्यों? रेगुलर स्कीम में आने से फायदा क्या होगा, आपको हर चीज का आईपीसी मिल जाएगा। पर आपको ये प्रोविजन ध्यान में मिलता जो बोलता है कि यदि आप रेगुलर स्कीम में हो और रेगुलर स्कीम से आप कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हो, यदि आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट हो जाते हो, तो उस पर्टिकुलर केस से हमको आईपीसी का रिवर्सल करना पड़ता है। उस गुड्स का ही नहीं जो हमारे स्टॉक में रखे हुए हैं, बल्कि उसका भी जो हमारे कैपिटल एसेट्स में है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने व्यापारी को नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर कराया, कुछ समय बाद उस व्यापारी का टर्नओवर अपने कंपोजिशन स्कीम के क्राइटेरिया में आ गया, तो व्यापारी बोलते हैं कि सर मेरे को कंपोजिशन स्कीम में आना है, क्या क्या कंप्लेंट करने पड़ेंगे। या फिर आपके व्यापारी के गुड्स ऐसे थे जो कि पहले टैक्सेबल थे और वो एग्जेंट हो गए, तो सरकार ने यहाँ बोला कि यदि कुछ ऐसा केस होता है कि आप पहले रेगुलर में थे और कंपोजिशन में आ गए और आप यहाँ पे टैक्स इवेजन होने के पूरे चांस थे, क्योंकि आप क्या करते हैं, हमेशा से व्यापारी को पहले रेगुलर स्कीम में लेके आते, वहाँ पूरा आईपीसी क्लेम करते, फिर उसको कंपोजिशन में लेके आते, क्योंकि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो मेजर खर्चा कैपिटल गुड्स में होता है और
और वहां पर हम लोग पूरी आईटीसी क्लेम करके हमेशा कंपोजिशन स्कीम में आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने बोला नहीं, आप रेगुलर से कंपोजिशन में आते हो या फिर आप टैक्सेबल से आपका पूरा का पूरा कुछ एग्जेंट होता है, तो उस केस में जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है उसका तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैपिटल गुड्स का भी नहीं मिलेगा। अब आपको सवाल आता है कैसे कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, तो यहाँ पर रूल 44 और सीजीएसटी रूल से वहां पर इसका तरीका दिया गया है, बराबर है। वो क्या बोलता है, चलिए एक बार हम लोग एक सवाल है, इन केस ऑफ फ्यूचर फ्रॉम टैक्सेबल टू एग्जेंट ट्रांजेक्शन और फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन वेदर इनकम टैक्स क्रेडिट इज फुली रेस्ट्रिक्टेड, तो बिल्कुल नहीं। यदि आप लोग यदि टैक्सेबल से एग्जेंट में आते हैं या फिर रेगुलर से कंपोजिशन में आते हैं, तो जो स्टॉक रखा हुआ है, जो आप माल बेचते हो, उस पर्टिकुलर से आपको जीएसटी रिवर्स करना है और आपको कैपिटल असेट्स पे जीएसटी रिवर्स करना है, बराबर है। अब वो किस तरह से रिवर्सल होगा हम लोग उसकी बात कर लें। उससे पहले मैं 2-3 और प्रोविजन आपको बता दूं। यदि आप जीएसटी पहले आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करा और जीएसटी नंबर के लेने के बाद में आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आपको जो है वो जीएसटी का रिवर्सल करना पड़ता है, नॉट ओनली ऑन जो गुड्स आपके पास रहता हुआ है कैपिटल गुड्स के केस में भी। तो हमने यहाँ पे 3 केस डिस्कस करने की कोशिश करी। पहला केस, यदि आप लोग रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, दूसरा केस यदि हम लोग टैक्सेबल से एग्जेंट सप्लाई में आ रहे हो, और तीसरा केस यदि हम लोग जीएसटी नंबर कैंसिल करवा रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा इसका आप लोग यदि लॉ पे नहीं चले, हम लोग लॉजिकली भी सोचते हैं। यदि हम लोग पहले रेगुलर स्कीम में थे जहाँ हम लोग सरकार को टैक्स पे कर रहे थे, और यदि एकदम से कंपोजिशन में आगे जाते हम लोग 6% पे करेंगे। हम लोग पहले टैक्सेबल जहाँ सरकार को टैक्स पे कर रहे थे, एग्जेंट में आगे जहाँ सरकार को टैक्स पे नहीं करने वाले, या फिर हमने जीएसटी नंबर कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया। इन तीनों केस में जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, हम लोग को उनका आईटीसी रिवर्स करना है, वो तो आपको समझ में आता है, पर हमको कैपिटल एसेट्स का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब कैपिटल एसेट्स का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो किस तरह से रिवर्स करेगा, और रूल 44 हमको रीड करना पड़ेगा। रूल 44 हमको ये बोलता है कि जो भी आपके पास कैपिटल एसेट्स है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की नॉर्मल स्कीम में थे, एकदम से आपने क्या करा, 2.5 साल बाद में आपके दिमाग में आया कि मेरा टर्नओवर ज्यादा कम हो गया है, मेरे को कंपोजिशन में आ जाना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा प्रोविजन उन्होंने ये दिया कि जितने टाइम आप नॉर्मल स्कीम में थे, जितने टाइम आप रजिस्टर थे, बराबर है, और जितने टाइम आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे थे, उतने टाइम का प्रपोर्शनेटली आपको आईटीसी कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का आईटीसी को जीएसटी हमेशा 5 साल की लाइफ देता है। मतलब जीएसटी क्या बोलता है कि यदि कोई भी कैपिटल एसेट आप खरीदते हो, तो उसकी आईटीसी को मैं 5 साल में डिवाइड करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 1 जुलाई 17 को जीएसटी में रजिस्टर हुए, आपको 2.5 साल बाद में बिल्कुल ये लगता है, 30 सितंबर 2020 आपको ये लगता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में आ जाना चाहिए, आपको जीएसटी नंबर कैंसिल करा देना चाहिए। तो वो ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 का लैपटॉप खरीदा, 1800 रुपए की आईटीसी क्लेम करी थी, तो आपको 50% प्रपोर्शनेटली, क्योंकि 2.5 साल मैंने नॉर्मल स्कीम में 2.5 साल आप टैक्स नहीं देने वाला हूँ, तो हमको 50% की आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा एज पर रूल 44। तो वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ, जितने टाइम तक मैं नॉर्मल स्कीम में रहा, जितने टाइम तक मैं रजिस्टर्ड रहा, और जितने टाइम तक मैं टैक्सेबल सप्लाई करता रहा, उतने टाइम तक की कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिल जाएगी। और टाइम को किस तरह से डिवाइडेड किया गया है, कैपिटल गुड्स की पूरी आईटीसी को 5 साल में डिवाइड करा गया है। तो यदि मैंने 2.5 साल तक नॉर्मल स्कीम में रहा, 2.5 साल तक मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड रहा, तो मेरे को पूरी 2.5 ईयर्स की आईटीसी मिल जाएगी, और 2.5 ईयर्स की रिवर्स करनी पड़ेगी। यदि 10,000 का लैपटॉप खरीदा, 1800 रुपए टैक्स पे किया, तो 900 रुपए का आईटीसी ही ले सकता था। मैंने ऑलरेडी 1800 रुपए डे 1 पे क्लेम कर दिया था, तो आज मेरे को 1800 रुपए को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर अगर सवाल ये आता है कि करना कैसे पड़ेगा, जैसे आप लोग कई बार कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर तो हमने सबने कराया हुआ, तो आप देखिएगा जीएसटी का 10 हम लोग जब फाइल करते हैं, जब फाइनल रिटर्न लोग फाइल करते हैं, वहां पर हमको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है इन केस ऑफ कैंसिलेशन। और यदि आप रेगुलर से कंपोजिशन में आ रहे हो या टैक्सेबल से एग्जेंट आ रहे हो, आईटीसी 03 फॉर्म के द्वारा हम लोग को ये डिटेल देनी पड़ती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब ये कोई भी डीलर जो है, जो नॉर्मल से कंपोजिशन में आ रहा है, और इस तरह के आईटीसी का जो भी रिवर्सल वगैरह हो रहा है, वहां पे सीए सर्टिफिकेट की भी नीड पड़ती है। चलिए एक लोग हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकली डिस्कस भी कर लेते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि
तरह का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है कि आप नॉर्मल, जब भी आईपीसी का रिवर्सल होता है, जब हम लोग नॉर्मल से कंपोजिशन स्कीम में आ गए या फिर हम लोग कैंसिलेशन करा रहे हैं, तो आईपीसी का रिवर्स करना पड़ता है। और यदि फिर भी आईपीसी कुछ बच जाती है, आईपीसी का रिवर्स हम लोग जीएसटी क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं और कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग 3 केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। पहले केस में क्या था, मैंने 1 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स खरीदा, आईपीसी पे करा 12,000 रुपए, तो इनवॉइस की वैल्यू थी 1,12,000 रुपए। मैंने 1 अप्रैल 19 को क्या किया, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में मैं उसको कंपोजिशन स्कीम में आना चाह रहा हूँ, बराबर है। तो अब क्या हुआ, मैंने इसको 1 सितंबर 17 को मैंने गुड्स खरीदा था और 1 अप्रैल 19 को मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाह रहा हूँ। तो 1 सितंबर 17 से लेकर 1 अप्रैल 19 तक जो है 577 डेज होते हैं, जो कि 19 महीना होता है। तो 19 महीना तो मैं नॉर्मल स्कीम में था, उसके बाद 41 मंथ में कंपोजिशन स्कीम में रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आईपीसी थी उस आईपीसी को डिवाइड किया और 12,000 रुपए के आईपीसी में से निकल के आया कि 41 मंथ का आईपीसी रिवर्स होगी, दैट इज 8200। तो मेरे को 8200 रुपए का आईपीसी रिवर्स करना है। अब मैंने मेरा लेजर में जाके देखा तो 10,000 रुपए की आईपीसी मेरे पास रखी हुई थी। तो 10,000 में से 8200 का आईपीसी में उससे सेट ऑफ करूंगा और बचा हुआ जो भी 1800 अमाउंट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कभी भी आपको यदि ऐसा कुछ केस होता है तो आपको रिफंड नहीं मिलता है, वो आईपीसी लेफ्ट हो जाती है। तो यदि आपका आईपीसी रखा हुआ है और आपको उसका जो रिवर्सल जो कम बनता है तो आप वो रिवर्स कर दोगे, उसके बाद में ये आईपीसी बचता है तो वो लेफ्ट होता है। दूसरे केस भी सिमिलर था, पर वहां पे मेरे पास आईपीसी जो रखी हुई थी 1500 रुपए रखी हुई थी और बचा हुआ जो है मेरे को जो 6700 केस में पेमेंट करना पड़ेगा, इस तरह से मेरा ट्रांजेक्शन क्लोज होगा। तीसरे जो पर्टिकुलर केस में है मेरा कोइंसिडेंटली जो रिवर्स जो तीसरा केस इस तरह का है, जब मैं कंपोजिशन स्कीम में जब जा रहा हूँ, वो डेट है 1 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2000 मैंने 1 सितंबर 2017 को खरीदा था और 1 अप्रैल 23 को मैं जा रहा हूँ कंपोजिशन स्कीम में। तो यहाँ पर कोई भी रिवर्सल की न्यूज नहीं आती, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ऑलरेडी 5 साल एक्सपायर 5 साल 7 महीने मैंने यूज कर दिया। जीएसटी में लाइफ जो कैपिटल गुड्स की वो ओनली 5 ईयर्स की है। तो यहाँ पर यदि कोई भी एसेट जो कैपिटल गुड्स 5 साल यूज कर दिया, वहां तो आईपीसी की रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। यदि मैं नॉर्मल स्कीम में था, यदि मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर था, बराबर है। फिर एक सवाल आता है कि हाँ, अभी तक का हमने सवाल किया था कि मैं नॉर्मल मैं अनरजिस्टर्ड हो रहा हूँ या फिर मैं नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहा हूँ। एक दूसरा सवाल आपको ये भी हो सकता है कि क्या मैं अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में जाऊँ या फिर मैं वॉलंटरी जीएसटी का नंबर लूँ, तो उस केस में क्या होगा। तो मैंने आपको एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है जो डे 1 से पूछता है आपसे मेरे को आज जीएसटी नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 7 महीने बाद मेरे को लग रहा है कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, मैं टर्नओवर एक्टिव रहेगा। तो इस सवाल का आंसर आपको यहाँ से निकल के आएगा। जीएसटी का सेक्शन है, सेक्शन 18(1) सबसेक्शन है, वो ये बोलता है कि जब भी आप पहले अनरजिस्टर्ड थे और आपको रिक्वायरमेंट आती है रजिस्ट्री होने की, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया, 40 लाख से ज्यादा हो गया, या फिर आपने अपनी इच्छा से जीएसटी नंबर लिया, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आते हो और यदि आप अपनी इच्छा से जीएसटी नंबर लेते हो, तो वहां पर आपको स्टॉक का तो फिर भी इनपुट मिल जाएगा जो आपकी बुक्स में रखा हुआ है, और वो भी 1 साल का, लेकिन कभी भी आपको कैपिटल गुड्स का इनपुट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होती है। यदि कोई क्योंकि क्या होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो मेजर खर्चे कैपिटल गुड्स के वही होते हैं, फर्नीचर में, सब में। तो कोई भी क्लाइंट यदि लग रहा है आपको कि 5 साल 8 साल 8 महीने 10 महीने 1 साल में जीएसटी नंबर मेरा हो जाएगा, टर्नओवर एक्टिव कर जाएगा, तो उसको डे 1 से हमको जीएसटी नंबर अप्लाई करवा देना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि यदि मैं पहले रजिस्टर्ड था कि रजिस्टर्ड कराया मैंने अपने आप को, क्योंकि मेरा टर्नओवर एक्टिव कर दिया, और या फिर मैंने अपनी इच्छा से बाद में कराया और परचेज पहले खरीदी, तो उस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गुड्स का आईपीसी नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखे चलिएगा, हमेशा जब भी हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं डे 1 पे कि आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सेक्शन 18(1)(a) और बी जो प्रोविजन है उसका ध्यान रखिएगा। कैपिटल गुड्स का आईपीसी कभी नहीं मिलता, और जो हमारी बुक में स्टॉक रखा हुआ है उसका आईपीसी मिलता है, बट वो ओनली 1 साल पुराना मिलेगा, उससे पुराना नहीं मिलेगा। तो यहाँ से उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का आंसर निकल जाता है, बराबर। उसके बाद में एक सवाल अच्छी तरह से अगेन यही पॉइंट डिस्कस है, वेदर इनपुट टैक्स सर्विस कैन बी अवेल्ड ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स लाइक इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन ऑन ड्यूरेशन और ड्यूरिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये सवाल है कि क्या मैं अपनी इच्छा से जीएसटी नंबर लेता हूँ या फिर मेरा टर्नओवर बढ़ाने के लिए जीएसटी नंबर लेता हूँ।
तो क्या सर्विसेज जो है और कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो सर्विसेज की तरह स्टॉक में रहेगी वो, तो वो उसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल इसका आंसर नो है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर दूसरा सवाल आता है फिर एक सवाल आता है कि कंपोजिशन डीलर से रेगुलर डीलर में है। तो पुराने केस में हमने तो बात करी थी जब रेगुलर से कंपोजिशन में था, तो वहां पर हम आईटीसी रिवर्सल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक केस उल्टा है। यहाँ पर केस क्या है, पहले मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर था और अब मैं रेगुलर स्कीम में जा रहा हूँ। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर होगा, जैसे हमने पहले किया। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने 2.5 साल रेगुलर स्कीम में था और 2.5 साल कंपोजिशन स्कीम में था, तो बाई डिफॉल्ट मैंने 2.5 साल की रिवर्सल कर दी। सेम सिमिलर ट्रांजेक्शन इसमें भी है कि यदि मैं पहले कंपोजिशन स्कीम में था और अब रेगुलर स्कीम में आ रहा हूँ, तो क्या होगा? तो बड़ा लॉजिकली वही आंसर है कि 5 साल में आईटीसी डिवाइडेड है, जितने टाइम तक कंपोजिशन स्कीम में रहा उतने टाइम तक आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और जितने टाइम में रेगुलर स्कीम में रहा उतने टाइम के आईटीसी को मेरे को मैं क्लेम कर सकता हूँ। अगर यदि थोड़ा सा उल्टा केस हम लोग करें, पहले हमने टैक्सेबल टू एग्जेंट किया था कि पहले मैं टैक्सेबल था कि एग्जेंट था। यहाँ पर केस उल्टा है, पहले मैं एग्जेंट सप्लाई करता था और जीएसटी में रजिस्टर्ड भी था, पर एकदम से मेरी सप्लाई टैक्सेबल होगी, तो क्या मैं आईटीसी को ले सकता हूँ? तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर यस है, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और इन सबका सवाल का आंसर इसी तरह से निकल के आता है कि जब आप सरकार को टैक्स पे नहीं कर रहे, या आप अनरजिस्टर थे, या आप कंपोजिशन में थे, जितने टाइम तक आप थे उतने टाइम तक आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, और जितने टाइम आप रेगुलर स्कीम में आए उतने टाइम की आपको आईटीसी मिलेगी। तो यदि पहले आप रेगुलर थे और उसके बाद कंपोजिशन में आए, तो आपने पहले भी नहीं क्लेम कर लिया, आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। यदि आप पहले कंपोजिशन में थे तो रेगुलर में आ गए, तो पहले आपने क्लेम नहीं करी है, तो जितने टाइम आप रेगुलर स्कीम में आए उतने टाइम की आईटीसी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अब अगर इसका आपका सवाल होगा कि इसको किस तरह से हम लोग को क्लेम करनी चाहिए, तो रिवर्सल के टाइम तो मैंने आपको सजेस्ट किया था आईटीसी 03 फॉर्म भरना है, पर यदि इसको जब क्लेम करने का बारी आती है तो हमको आईटीसी 01, आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे इससे, आईटीसी 01 फॉर्म में डिटेल डालनी पड़ती है, और वो डिटेल डालने के बाद में हमको पूरे बताना पड़ता है कि मैं ये पर्टिकुलर स्टेट में पहले अनरजिस्टर था, अभी रजिस्टर हो रहा हूँ, तो मेरे को उस केस में स्टॉक की मिल जाएगी, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे को आईटीसी 01 में डिटेल देनी पड़ती है, और उसके बाद में वो आईटीसी मेरे को क्रेडिट लेजर में स्टोर होती है। यहाँ पर अगेन इस तरह से यदि कोई आईटीसी क्लेम करता है, तो क्या यहाँ पर अगेन सीए के लिए सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि 2 लाख रुपए से ज्यादा वो आईटीसी इस तरह का क्लेम करता है, तो यहाँ पर उसको सीए से बिल्कुल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जब हम लोग ये डिटेल डालते हैं, तो वो जो वेरिफिकेशन है वो सामने वाले वेंडर से होगा कि हमने वाकई में उनसे परचेज किया था कि नहीं किया था, क्योंकि जब हम लोग अनरजिस्टर्ड थे और फिर रजिस्टर्ड में आए, तो वहां पर हमारा जीएसटी नंबर बिलों में मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए आईटीसी 01 में डिटेल दी जाती है कि आप बोल रहे हो कि पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, अभी रजिस्टर्ड में आ गए, तो आप जिन जिन व्यापारियों से माल खरीदा था वो सारे बिलों की डिटेल दे दो। ये हम लोग, हमारा काम है आईटीसी 01 आने के बाद चेक करना है कि नहीं मिलना बराबर। उसके बाद में मैंने जो आपको बताया था, ओनली पुराने 1 साल की आईटीसी ही मिलती है। तो अगर यदि मान लो कोई ऐसा व्यापारी है जो स्टॉक इस बार पुराने 3 सालों का रखा हुआ है, तो उसको ओनली 1 साल की बिलों की, जैसे आपने प्राण वन में भी दिखा होगा, जब हम लोगों ने प्राण वन फॉर्म फाइल करे थे, तो पुराने 1 साल की आईटीसी मिली थी, तो पुराने 1 साल की बिलों की ही आईटीसी यहाँ पे मिलती है बराबर। उसके बाद में यदि ये बड़ा बहुत टाइम काफी आप लोग का होता होगा, और आप लोग का सवाल भी होगा कि प्रोप्राइटरशिप से मैं पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता हूँ, या पार्टनरशिप से मैं प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होता हूँ बराबर है। तो किसी भी तरह का यदि मैं कन्वर्जन होता है, यदि मैं किसी भी तरह से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, इवन प्रोप्राइटरशिप से जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में गए, तो वहां पर क्या होता है, 10 नंबर मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी है, आपको बिल्कुल उस पर्टिकुलर चीज का आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो हो सकता है कैपिटल गुड्स का भी हो सकता है नॉर्मल वाला भी। तो यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं किया गया है, यहाँ तो आईटीसी फॉर्म 02 होता है, वो फाइल करना पड़ता है, वो फाइल करने के बाद में सामने वाले को दिख जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये पर्टिकुलर जब भी सेल मर्जर अमालगमेशन है, किसी भी तरह का बिजनेस एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे का चेंज हो रहा है, तो उसका आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर भी अगेन सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे सर्टिफिकेट सीए ये देता है कि ये जो ट्रांसफर जो इसमें एक कंडीशन वहाँ लिखी हुई है कि आईटीसी तभी ट्रांसफर होगा जब वहाँ पे जहाँ पे असेट्स के साथ में लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो रही है। तो जब भी बिजनेस प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हो रहा है या एलएलपी से कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे दी है कि वो तभी आपको आईटीसी मिलेगा जहाँ पे उन्होंने असेट्स भी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेट सीए से लेना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी उस केस में। अरे ट्रांसफर वो उसको जो ट्रांसफर है आईटीसी 02 भरेगा उसको सामने वाले को डिटेल दिख जाएगी, उसको अपना एक्सेप्ट करके वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। एक अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है यहाँ पे एक रूल 43 है। जो आपने सेक्शन 17(2) जो 17(2) पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जनरल परसेप्शन भी मैं आपको बताऊं, अभी तक तो हमने बात करी यदि मैं रेगुलर से कंपोजिशन में आया, कंपोजिशन रेगुलर में आया। अब मैं उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो कि जनरली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आईटीसी को रिवर्स नहीं करते, हम लोग भी प्रैक्टिकली हम लोग भी नहीं करते। ये रूल 43 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी किसी भी क्लाइंट से हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो आपने देखा होगा वो जनरली कोई ना कोई एग्जाम से किसी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, बराबर है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग रूल 42 को अप्लाई कर लेते हैं कि भाई जो जो ट्रांजेक्शन एग्जाम है उसके तो हम लोग डायरेक्टली लिंक होता है, वहाँ पे आईटीसी हम लोग क्लेम नहीं करते। जैसे लेकिन कैपिटल गुड्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट क्या करता है, 50 लाख रुपए का एग्जाम सप्लाई कर रहा है, 50 लाख रुपए का टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। मैं लैपटॉप खरीदे, मैंने 4 लैपटॉप खरीदे, मैंने 4 लाख रुपए का लैपटॉप खरीद के उसको कैपिटलाइज कर दिया, पूरी की पूरी 72,000 क्लेम कर दी। सरकार ये बोलती है कि जब आपने लैपटॉप खरीदा या आपने जो आपके ऑफिस का फर्नीचर है वो लिया, तो आप वहां पर वो पूरा का पूरा उस पर्टिकुलर टैक्सेबल के लिए यूज नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ कैपिटल गुड्स की क्रेडिट ऐसी भी होगी जो आप टैक्सेबल के लिए भी काम कर रहे हो, एग्जाम के लिए भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई मशीन है, एक मशीन ऐसी है जो टैक्सेबल के लिए मैंने कही थी, एक मशीन जो है एग्जाम के लिए कही, वहां पर बड़ा स्टेप थोड़ा क्लियरली दिख जाता है मेरे को कि जो टैक्सेबल के लिए कैपिटल गुड्स खरीदा उसकी इनपुट मिल जाएगी, जो एग्जाम के लिए खरीदा उसकी नहीं मिलेगी। लेकिन जो जो फर्नीचर है ऑफिस का, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है, जो इस तरह के जो कैपिटल असेट जिसका आईटीसी जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो जो गुड्स मैं दोनों काम में लेता हूँ, वहां पे सरकार ने बोला कि नहीं, हम इसको आपको पूरी आईटीसी नहीं देंगे, हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले से आपको उसका आईटीसी रिवर्स कर देंगे, बराबर है। अब वो फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मैं रूल 43 आपको बता दूं। रूल 43 कुछ इस तरह से है, वो ये बोलता है कि आपका कोई कैपिटल गुड्स इस तरह का है जो नॉन बिजनेस के काम आ रहा है, जो कि एग्जाम सप्लाई के लिए काम आ रहा है, आप उसके आईटीसी बिल्कुल मत लो, डे 1 से आप उसको कैपिटलाइज कर दो, डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो। लेकिन आपके जब टैक्सेबल में काम आ रहा है और जीरो रेट में काम आ रहा है, वहां पर आपको पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर लेनी है। तो तीन तीन पार्ट में डिवाइड करिए। यदि मैं टैक्सेबल पार्ट के लिए कैपिटल गुड्स खरीदा हूँ, पूरी आईटीसी क्लेम कर लो। मैं नॉन टैक्सेबल पार्ट के लिए कैपिटल गुड्स खरीदा हूँ, जो पूरी की पूरी आईटीसी रिवर्स कर दो। तीसरी आई, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि 50 लाख का टैक्सेबल दिया, 50 लाख का एग्जाम दिया, पर लैपटॉप हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया। यहाँ पर उन्होंने बोला कि क्योंकि जो जो कॉमन कैपिटल गुड्स है उसके आईटीसी को हम लोग फॉर्मूला देंगे, उस बेसिस के ऊपर आपको ये रिवर्स करनी है। अब वो रिवर्स कैसे करनी है, वो एग्जाम्पल समझते हैं। तो रिवर्सल का शायद मेरे को नहीं लगता हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज करते होंगे, क्योंकि बड़ा उसमें जहाँ पर जिस भी क्लाइंट से आपके एग्जाम सप्लाई हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई भी हो रही है, तो हर महीने हमको एक काम करना होता है। वो क्या काम करना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लाइंट था, उसने क्या करा, आईटीसी जो उसने नॉन बिजनेस पर्पज के लिए कैपिटल एसेट सीरीज का आईटीसी का 10,000 रुपए। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल था कि उसने नॉन बिजनेस पर्पज के लिए आईटीसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है उसने पर्सनल यूज के लिए खरीदी और उसने अपने कैपिटलाइज कर दिया, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगी। उसने कुछ कैपिटल एसेट खरीदी एग्जाम सप्लाई के लिए, तो उसके लिए तो 20,000 रुपए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका पूरा का पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर तीसरी उसने एक तरह का प्रोडक्ट खरीदा, इस तरह कैपिटल गुड्स खरीदी जो 50,000 रुपए उससे जीएसटी पे करा, जो कि पूरी की पूरी टैक्सेबल सप्लाई में काम आती है, जहाँ पूरा मिल जाएगा। तो 50,000 का पूरा मिल जाएगा, 20,000 का बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हम लोग एक ऐसी कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने आईटीसी पे करा 3,90,000 रुपए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 12.5 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी जो कि दोनों मेरे काम आ रही है, उसके ऊपर मैंने आईटीसी पे करा 1.5 लाख रुपए का।
और उसके ऊपर इन्वॉइस दे दी थी 14 लाख रुपए की लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने ये असेट खरीदी तो 12 अप्रैल 2020 को खरीदी। दूसरी मैंने असेट खरीदी 20 लाख रुपए की, उसके ऊपर जीएसटी मैंने पे किया 2,40,000, बिल बन गया 22,40,000 रुपए का, और वो खरीदी मैंने 21 में 18 को, बराबर है। तो यहाँ पर सरकार ने ये बोला, जब भी कोई ऐसी कैपिटल असेट आप खरीद रहे हो, जब भी कोई ऐसी कैपिटल असेट आप खरीद रहे हो जहां पर आप एग्जेम्प्ट में भी काम ले रहे हो, टैक्सेबल में काम ले रहे हो, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स को पूरा एलटीसी को 7 महीने में डिवाइड कर लो। तो 7 महीने कैसे 5 साल, तो मतलब किसी भी कैपिटल गुड्स को, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बोला था, जीएसटी 5 साल में डिवाइड करता है। तो जीएसटी ये बोलता है कि जब भी ऐसी कोई कैपिटल असेट तो दोनों काम में आ रही है, आप डे वन से उसकी पूरी एलटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं है। आपको आज की तारीख में नहीं पता कि वो कितनी तो एग्जेम्प्ट में काम आएगी और कितनी टैक्सेबल में काम आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने आज 2 असेट खरीदी, कुछ उसको मैं एग्जेम्प्ट में काम ले रहा हूँ, उसको मैं टैक्सेबल में काम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ये बोलता है, जीएसटी कानून ये बोलता है कि 2,40,000 रुपए और 1,50,000 रुपए, पूरी की पूरी 3,90,000 रुपए आपने वो कंडीशन जो 16(2) में लिखी हुई है, आपको ये कैपिटल असेट मिल जाए, आपने इनवॉइस बना चाहिए और सामने वाले टैक्स पे करके रिटर्न कर दीजिए, 390 आप उसी महीने में क्लेम कर लो। पर अगले 7 महीने तक आपको एक काम करना है। वो क्या काम करना है, आपको हर महीने कैलकुलेशन करनी है। तो फॉर एग्जांपल यदि आप स्क्रीन पे देखो, जो आईटीसी 3,90,000 रुपए थी, वो 3,90,000 रुपए की आईटीसी को उन्होंने 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो 14 लाख रुपए की आईटीसी को मैंने जब 60 पार्ट में डिवाइड करा तो एक महीने की 2,500 रुपए आईटीसी आती है। जब मैंने 2,40,000 रुपए की आईटीसी को 60 महीने में डिवाइड करा तो 4,000 रुपए आईटीसी आती है। तो जब 3,90,000 रुपए की आईटीसी को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड करा तो हर महीने की 6,500 रुपए आईटीसी आती है। तो अब ये रूल क्या बोलता है कि जो 3,90,000 रुपए का एलटीसी आपने जिस महीने असेट खरीदी उस महीने क्लेम कर लो, बस आपको हर महीने एक रिवर्सल करना है। वो क्या रिवर्सल होगा, जो हमने 3,90,000 रुपए एलटीसी को जो 60 पार्ट में डिवाइड करा है, वो 6500 रुपए एलटीसी होता है हर महीने का। वो 6500 रुपए को आपको टर्नओवर के बेसिस पे रिवर्स करना है, आपको क्लेम करना है। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपस से। जो आईटीसी कैपिटल गुड्स की मेरे पूरी टैक्सेबल में काम आ रही है उसकी पूरी क्लेम कर देना है, और जो आईटीसी मेरे कैपिटल गुड्स की एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम आ रही है उसकी पूरी मेरे को रिजेक्ट कर देना है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। लेकिन जो आईटीसी ऐसी है जो कॉमन है, मेरी टैक्सेबल में भी काम आ रही है और मेरी एग्जेम्प्ट में भी काम आ रही है, तो सरकार ने ये बोला क्योंकि आपको पहले भी नहीं पता है कि वो कितनी तो एग्जेम्प्ट में काम आएगी, कितनी टैक्सेबल में काम आएगी, क्योंकि आईटीसी वो कितनी कितने काम आ रही है, सरकार ने बोला हम टर्नओवर के बेसिस पे पता लगा पाएंगे, हमारे पास और कोई जरिया नहीं है, हम आप आके चेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला हम टर्नओवर के बेसिस, अब टर्नओवर किस दिन का पकड़ूं, तो सरकार ने बोला आप एक काम करो, ये पूरी 3,90,000 आईटीसी आप पहले दिन क्लेम कर लो, बस 3,90,000 आईटीसी को 7 पार्ट में डिवाइड कर लो और हर महीने उतनी आईटीसी रिवर्स करनी जिसकी आपके एग्जाम्स में काम आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस 3,90,000 रुपए आईटीसी थी, तो मैंने क्या बोला कि मई में आई थी। तो जब मई 2020 में मैंने देखा टर्नओवर कितना है, तो यहाँ पर निकल गया 25 लाख रुपए मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, और मई का मेरा जो टैक्सेबल टोटल टर्नओवर है 1 लाख, तो 25 लाख रुपए मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाई का था मई का, और टैक्सेबल था मेरा 75 लाख, टोटल टर्नओवर था 1 करोड़ रुपए, बराबर है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि मई 2020 के अंदर मैंने 25% तो सप्लाई करी एग्जेम्प्ट और 75% सप्लाई करी टैक्सेबल। तो वो जो मैंने मेरी 3,90,000 आईटीसी को मैंने डिवाइड किया था, मैंने जो 60 पार्ट में, और जो अमाउंट निकल के आया था उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो था अपना 2,500 रुपए तो 1.5 लाख रुपए वाली गुड्स के लिए, और 4,000 रुपए जो मैंने 20 लाख रुपए की ऐसे दी। तो वो जो अमाउंट मैंने जो इस महीने का मेरा हुआ 6500 रुपए को फिर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, 1,625 रुपए निकल के आया। वो कैसा आया कि जिस महीने मैंने कैपिटल गुड्स खरीदी उस महीने मैंने 3,90,000 रुपए आईटीसी क्लेम कर दी। अब हर महीने मेरे को एक कैलकुलेशन करनी है, इस 3,90,000 रुपए में मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किए जो कि निकल के आया 6500 रुपए। अब हर महीने मेरे को देखना है कितनी एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी टैक्सेबल सप्लाई है। महीने निकल के आया कि मेरे एग्जेम्प्ट सप्लाई है 25 लाख और टैक्सेबल सप्लाई है 75 लाख, टोटल टर्नओवर 1 करोड़ है। तो सरकार ने बोला आप 25% एग्जेम्प्ट सप्लाई कर दो इस महीने में, तो आप एक काम करो 6500 रुपए का 25% आईटीसी को रिवर्स कर दो, जो कि 1,625 रुपए होता है।
हर महीने मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है, और किसी महीने आपका टर्नओवर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, किसी भी लास्ट टैक्स पीरियड मतलब पिछले महीने का टर्नओवर उसमें सर आपका वीडियो साइड स्टॉप हो गया। अक्षय भाई आवाज नहीं आ रही, हाँ सर। आप आउट हो। जी अब आ गया सर। तो रूल 43 लगता है कभी जब मैं एग्जाम अप्लाई कर रहा हूँ मैं सर आपकी पीपीटी, सर पीपीटी शो नहीं हो रही। एक मिनट ना, तो रूल 43 लगता है कब है जब मैं एग्जाम अप्लाई कर रहा हूँ, टैक्सेबल अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जब पूरी की पूरी टैक्सेबल ही करूंगा तो रूल 43 की बात नहीं होगी। रूल 43 बड़ा सिंपल सा ये बोलता है कि जो कैपिटल असेट्स आप बिजनेस के काम नहीं ले रहे हो, जो एग्जाम अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसका एग्जिस्टिंग मत लो, डेप्रेशन लो, उसके ऊपर आप कैपिटलाइज कर लो, जो टैक्सेबल में काम ले रहे हो पूरी ले लो। पर जो आप दोनों के काम ले रहे हो, आप पहले भी पूरी आईटीसी क्लेम कर लो और उसको 60 मंथ में डिवाइड कर लो और हर मंथ के टर्नओवर बेसिस पे रिवर्स कर दीजिए। तो मतलब इस केस में हमारे वाले केस में 3,90,000 रुपये हमने जीएसटी के पे करके ले लो उसी महीने में, पर उस महीने की 390 को जब मैंने 60 में डिवाइड किया 65 में निकल गया, 6500 रुपये को मैं 25:75 में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मई 2020 का टर्नओवर मेरा 25 लाख एग्जाम था, टैक्सेबल 75 लाख का, टोटल 1 करोड़ था, तो 25% आईटीसी मेरे को रिवर्स करनी रहेगी। बराबर। अब एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉब वर्क का। जॉब वर्क का कई आपके क्लाइंट्स होंगे जॉब वर्क वाले, वहां पर बड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आईटीसी हमको तभी मिलता है जब हमको इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए। पर जॉब वर्क वाला केस को एक्सेप्शन में डाला गया। इस केस में क्या होगा कि यदि आप किसी जॉब वर्कर को डायरेक्टली भी यदि गुड्स दिखाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा। इवन आपको नॉर्मल गुड्स का भी आईटीसी मिल जाएगा, जॉब वर्क के आप डायरेक्टली किसी जॉब वर्कर से जाते हैं। पर कंडीशन ये है कि नॉर्मल गुड्स 1 साल में वापस आ जाना चाहिए और कैपिटल गुड्स 3 साल में वापस आ जाना चाहिए। तो आप जब भी देखें, जब बड़ी कॉर्पोरेट फंड से जाएंगे हम लोग, जॉब वर्कर वाले की जरूर है, तो वहां पर आप हमेशा क्योंकि क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड अब खत्म हो रहा है जीएसटी में, बराबर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमेशा ध्यान रखना है प्रोविजन को कि ऐसा कोई आईटीसी यदि किसी क्लाइंट ने आपका क्लेम किया है जो जॉब वर्कर के यहाँ पे डायरेक्टली एसेट रही है, तो ये देखिएगा कि 3 साल से ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 3 साल में वो जो कैपिटल गुड्स है वो वापस मिल जाना चाहिए, जिस सप्लायर ने वो सीधा जॉब वर्कर के यहाँ मिला है। तो टैक्सेबल ट्रांजेक्शन इस तरह से होता है कि वो वापस से गुड्स, ये इस प्रोविजन का एक्चुअली मतलब मेरे को समझ में आया, क्योंकि यदि कोई असेट जो मैंने जॉब वर्कर के यहाँ डायरेक्टली भिजाई है और वो जॉब वर्कर रेगुलर नहीं भी काम करता है, तो 3 साल बाद उसको वापस मंगाने का एक लॉजिक बड़ा कंफ्यूजन था कि क्यों उसको जॉब वर्कर के यहाँ से वापस मंगाना है, क्यों वापस भेजना है। पर लॉ में ये चीज लिखी है कि यदि जॉब वर्कर के यहाँ आपने डायरेक्टली कोई असेट भिजाई है और आपने उसका आईटीसी क्लेम किया है तो वो मिल जाएगा, पर 3 साल के अंदर वापस से वो मिल जाना चाहिए। अदरवाइज आपको पहले दिन से आपकी वो सप्लाई मांगनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जुलाई 17 को कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और आपने सीधा जॉब वर्कर से भिजा दिया, बराबर है, तो 30 जून 20 तक यदि वो आया वापस नहीं आया वो आपका कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर, तो आपको 1 जुलाई तक की वो सप्लाई मान ली जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको ब्याज पेनल्टी का देना पड़ेगा। इसके साथ में रूल सेक्शन 143 और रूल 14 की जॉब वर्कर के लिए स्पेसिफिक है, बट इस केस में हम लोग को कैपिटल गुड्स से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट था जो डिस्कस करना है।
अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ प्रोविजन ट्रांजिशनल क्रेडिट से रिलेटेड है कैपिटल गुड्स के, तो एक बार को मैंने यहाँ पे सेक्शन लिखे हैं, बट इसको इतना क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजिशनल का हमारा ये निकल गया, तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने ओनली सेक्शन रेफर किए हैं, एंड में टाइम लगता है तो हम लोग ये वापस से डिस्कस करेंगे। तो मोरलेस जो डिस्कशन था इनपुट को लेते हुए और जो कैपिटल गुड्स को किस तरह से हमने जो डिस्कशन किया उस तरह से किया। हमने शुरू में किया कि कब कैपिटल गुड्स किस चीज को बोला जाएगा, फिर हमने किया कि कैपिटल गुड्स यदि कोई नॉर्मल से रेगुलर कंपोजिशन में आ रहा है या फिर कोई अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड में आ रहा है तो क्या होगा, फिर रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड में आ रहा है तो क्या होगा, बराबर। उस केस में उसके बाद में जो वर्कर से लेकर ट्रांजेक्शन को डिस्कस हमने करने की हमने कोशिश करी। एक जो क्वेश्चन था कि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद में आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस करने की कोशिश करी। अब हम लोग जो दूसरी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है कैपिटल गुड्स के सेल पर और डिस्पोजल पे जीएसटी जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप लोगों का जनरली मोटर कार से रिलेटेड सवाल रहता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब क्लाइंट्स के क्योंकि वन टाइम ट्रांजेक्शन है और हम लोग उस टाइम पे उसी टाइम पे जो ट्रांजेक्शन आता है हम लोग लॉट देखने की कोशिश करते हैं, बराबर है। तो कैपिटल गुड्स बेचने पर और डिस्पोजल करने पर मेरे को जीएसटी पे करना है कि नहीं करना, क्योंकि मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे सवालों का आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। यदि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला कि कैपिटल असेट जब कैपिटल गुड्स जब मैंने सर्च किया तो मेरे को कितना टाइम मिला, पर जब कैपिटल गुड्स मैंने सर्च किया तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं जो असेट्स वर्ड के नाम से यूज किए गए जीएसटी एक्ट में, और वो कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में फॉलो हो रहे हैं। हम लोग को ये चीज जो डिस्कशन भी रिलेवेंट है हमारे डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। तो जब मैंने असेट्स वर्ड को ढूंढने की कोशिश करी जीएसटी एक्ट में, जीएसटी रूल्स में, तो यहाँ पर 7 बार मुझे जीएसटी एक्ट में असेट्स वर्ड मिला और 6 बार रूल्स में मेरे को असेट्स वर्ड मिला। तो अब देखिएगा हम लोग ने जो स्टार्टिंग से डिस्कशन किया, पहले हमने एक ट्रांजेक्शन को जीएसटी में किस तरह से फ्लो करवाना है वो डिस्कस करने की कोशिश करा। फिर हमने ये डिस्कस करने की कोशिश करा कि किस चीज का आईटीसी मिलेगा और किस चीज का आईटीसी नहीं मिलेगा, बराबर। अब हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैपिटल गुड्स बेचने से हमको जीएसटी पे करना है क्या, या कोई आईटीसी रिवर्सल होती है क्या, या मान लो कैपिटल गुड्स खराब हो गया, लैपटॉप टूट गया तो उस केस में क्या होगा, चोरी हो गया तो क्या होगा। उससे पहले एक बार हम लोग तो जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करी तो मेरे को एक चीज समझ में आई, ये चीज मेरे को जीएसटी में जो प्रोविजन लिखे गए हैं वो कैपिटल गुड्स के नाम पे सर्च करूंगा तो नहीं मिलेंगे, एक असेट्स वर्ड यूज करा गया है। असेट्स वर्ड को जब मैंने यूज करा तो मेरे को कुछ प्रोविजन निकल गया है। प्रोविजन क्या निकल गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कशन किया था तो ये जो सवाल है कि कैपिटल गुड्स पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, क्यों आया। सबसे पहले मैं चीज बता दूं आपको कि कैपिटल गुड्स जो है वो गुड्स पहले है और कैपिटल गुड्स बाद में। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल गुड्स सबसे पहले गुड्स है, फिर कैपिटल गुड्स बाद में, बराबर है। तो इवन यदि कोई चीज कैपिटल गुड्स है कि नहीं है तो भी वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है, बराबर। हमने स्टार्टिंग में जब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को रीड किया था और वहां पर मैंने आपसे सवाल किया है, कि क्या कैपिटल गुड्स उसी को बोलेंगे जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हुआ है, बराबर है। तो इवन ये सवाल का आंसर हमको क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ जब ये सवाल आता है कि कैपिटल गुड्स पे बेचने से टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैपिटल और अगेन दूसरा सवाल ये आता है कि चलो मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी तो वो तो कैपिटल गुड्स नहीं हुआ तो मेरे को टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे, इवन कोई चीज यदि कैपिटल गुड्स नहीं है तो वो गुड्स तो है ही है, और इवन यदि कोई चीज गुड्स है और सप्लाई की कंडीशन फुलफिल कर रही है, आपने उसके लिए पैसा चार्ज किया है, कंसिडरेशन लिया है, तो उसके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली टैक्स लगेगा, चाहे आपने आईटीसी क्लेम करी हो चाहे नहीं करी हो, सब्जेक्ट को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो पहला सवाल ये है कि आपके दिमाग में जो कैपिटल गुड्स नाम से एक अलग से क्वेश्चन जनरेट होता है
कि कैपिटल गुड्स बेचने पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स होने से पहले वो गुड्स है, वो गुड्स है इसलिए कैपिटल गुड्स है। हो सकता है कोई गुड्स को कैपिटल गुड्स पहले गुड्स है, उसके बाद में कैपिटल गुड्स, बराबर है। तो हो सकता है जैसे लैपटॉप है, मैं लैपटॉप का व्यापारी हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं चार्टर्ड अकाउंट पीएफ हम चलाता हूँ मेरी, और मैंने लैपटॉप खरीदा, तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। तो इवन कोई यदि मैंने किसी चीज पे मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है, तो फिर वो कैपिटल गुड्स आप नहीं भी बोलते हो, तो गुड्स के डेफिनेशन में तो आएगा। उसको बेचने पर मेरे को जीएसटी लगेगा, इसमें कोई भी डिले नहीं है, सब्जेक्ट टू कोई एग्जेंशन ना हो। पहला सवाल। तो हम लोग वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल, हमने जब सप्लाई की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो सप्लाई की डेफिनेशन में बड़ा क्लियर है कि दो चीजें लिखी हुई है कि सप्लाई क्या है। सप्लाई तब मानी जाएगी जब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, बराबर है। पर जीएसटी का एक शेड्यूल वन है जो ये बोलता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होंगे जिसके ऊपर इवन आपने कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, तो भी उस पर्टिकुलर केस में हम लोग उसको सप्लाई ही मानेंगे। तो जब मैंने कैपिटल एसेट ये जब मैंने ये जानने की कोशिश करी कि कैपिटल गुड्स को बेचने पर या कैपिटल गुड्स को डिस्ट्रॉय हो जाने पर या पर्सनल यूज करने पर इन सब के ऊपर जीएसटी किस तरह से होगा, तो जब प्रोविजन रीड करने की कोशिश करी तो कुछ एक ट्रांजेक्शन एक प्रोविजन ये निकल के आया कि यदि आप किसी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, मतलब यदि आप किसी भी बिजनेस असेट्स का परमानेंट ट्रांसफर करते हो या डिस्पोजल करते हो, और जहां आपने एंटिटी क्लेम करी है वहां पर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा। तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आता है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिस कैपिटल असेट से आपने आईटीसी क्लेम करी और आपने उसको फ्री में कहीं निकालना चाहा या फ्री में उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहा या किसी भी तरह से उसको बाहर करना चाहा और आपने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, तो भी आपके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला सवाल, ऐसे कैपिटल गुड्स जिससे मैंने आईटीसी क्लेम करी है और ऐसे कैपिटल गुड्स जिससे मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है। फिर सवाल को दो पार्ट में आगे डिवाइड करता हूँ। ऐसे कैपिटल गुड्स जिसमें मैंने आईटीसी क्लेम करी है पर मैंने उसको बिना कंसिडरेशन के बेचा, एक बार मैंने कंसिडरेशन पे बेचा। दूसरा, ऐसे कैपिटल गुड्स में आईटीसी क्लेम नहीं करी है जिसको कंसिडरेशन में बेचा, बिना कंसिडरेशन बेचा। चार सवालों के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि मैंने एक असेट खरीदी, असेट 10,000 रुपए खरीदी और उसके ऊपर 1800 रुपए जीएसटी पे करा, बराबर है। वो मैंने 1800 रुपए पे करा, 11,800 रुपए पूरे मैंने उस ट्रांजेक्शन के ऊपर मैंने आईटीसी ली नहीं और पूरा 11,800 कैपिटलाइज कर दिया। अब मैं कैपिटल एसेट को जो मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी, क्या मैं उसको बेचूंगा तो कोई जीएसटी पे करना है क्या? क्योंकि ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। जब मैंने पूरी जैसे मोटर कार के केस में आपको सवाल आएगा या कोई आईटीसी पे आपने कोई गुड्स पे आपने आईटीसी क्लेम नहीं करी, तो वहां आपको सवाल आएगा कि क्या ऐसी कोई गुड्स जिससे मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी उसको बेचने पर भी जीएसटी पे करना है क्या? ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हमने कुछ गुड्स को 10,000 रुपए में खरीदा, 1800 रुपए जीएसटी पे करा, 11,800 से कैपिटलाइज करा। अब सवाल ये आता है कि यार ना किसी भी को जीएसटी बेचने पर किस चीज का, ये बिल्कुल इस सवाल का आंसर जो है वो मैंने आपको पहले सवाल में देने की कोशिश करी है कि यदि 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 कोई चीज आप बेच रहे हो वो अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे आपने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है, तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जीएसटी आता है कि नहीं आता। तो ये 4-5 तरह के सवाल हम उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रोविजन है जीएसटी का, ये बोलता है किसने 18 के, तो यदि आपने किसी कैपिटल, एक प्रोविजन हमने डिस्कस किया जो जीएसटी में लिखा हुआ है कि यदि आपने किसी कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम करी है तो आप उसको फिर सीधी में भी निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको सप्लाई मानी जाएगी और वो कहीं ना कहीं उस पर जीएसटी पे करना है। तो एक प्रोविजन हमने शेड्यूल 1 सेक्शन 7 पढ़ा जो कि इस तरह सप्लाई से लेकर हमारे लिए रिलेवेंट है।
दूसरा प्रोविजन एक और था शेड्यूल 2 सेक्शन 7 में लिखा हुआ था, वो भी इसी तरह का प्रोविजन था, बट उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रोविजन जीएसटी में सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 में बोलता है कि यदि कोई भी ऐसा कैपिटल गुड्स जहां पर आपने आईटीसी क्लेम करी है, तो आईटीसी क्लेम करने पर उन्होंने मैकेनिज्म भी बताया है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए खरीदी और 1 लाख रुपए की खरीदने के बाद हो सकता है आपने उसको 10,000 में बेच दी, हो सकता है उसको 90,000 में बेच दी और आपने आईटीसी पूरे 1 लाख पे क्लेम कर ली। तो इसका एक मैकेनिज्म दिया है कि किसी कैपिटल गुड्स को आपने खरीदा और खरीदने के बाद आपने उसको बेचने की कोशिश करी, तो आपको किस तरह से आईटीसी को रिवर्स करना है। सेक्शन 18 इसको भी प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रोविजन में हैं। तो ये सारा जो है हम लोग रूल 44 के साथ में पहले हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से प्रोविजन में आएंगे। तो पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल में वो एग्जांपल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने एक लैपटॉप परचेज करा था जनवरी 1, 2018 को, और उसको मैंने 50,000 रुपए का परचेज किया था और उसके ऊपर मैंने टैक्सेस पे दिए थे 10,000 रुपए। तो जनवरी 2018 को जब मैंने 50,000 रुपए की परचेजिंग करी, तो मैंने 10,000 रुपए का पूरा आईटीसी यूटिलाइज कर लिया था, बराबर है। अब क्या हुआ, 30 जून 2020 को मेरे दिमाग में वो आया कि मैं पर्टिकुलर लैपटॉप को बेच देता हूँ क्योंकि मेरी यूज का नहीं रहा। मैंने क्या किया, उसको 10,000 रुपए में होल्ड आउट कर दिया। जब 10,000 रुपए में होल्ड आउट किया तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार मैंने जब इसको खरीदा था तो 50,000 में खरीदा था और उसके ऊपर 10,000 रुपए की आईटीसी ली थी। अब मैं इसको 2.5 साल बाद बेच रहा हूँ और 10,000 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मैं 1800 रुपए जीएसटी पे कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा सरकार मतलब इसको क्या 1,000 में बेच सकता हूँ, 15,000 में बेच सकता हूँ, बिल्कुल कितना में कर सकते हैं आपकी तरह से। पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 में रेस्ट्रिक्शन है, वो ये बोलता है कि जब आपने कोई कैपिटल गुड्स की आईटीसी क्लेम कर ली है और आप उसको बेच रहे हो, तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो आपने कितने में बेचा, वो 10,000 में बेचा, उसके ऊपर क्या टैक्स बनता है जो कि 1800 में बनता है। दूसरा, आप उस कैपिटल एसेट को, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 5 साल उसका टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, तो आपने उस कैपिटल गुड्स को जनवरी 2018 खरीदा था और 30 जून को बेच रहे हो, तो आपने 2.5 साल यूज किया है। तो इसका मतलब 5 साल में से 2.5 साल आपने यूज किया कैपिटल एसेट को, तो आपको आईटीसी कितनी मिलनी थी, जो कि 10,000 का 50% 5,000 रुपए। तो ये प्रोविजन बोलता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 कि यदि किसी भी कैपिटल गुड्स जो आपने जिससे आईटीसी क्लेम करी है और आप उसको बेचने जा रहे हो, तो आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, जो भी ट्रांजेक्शन लेवल पे टैक्स बन रहा है और आईटीसी रिवर्सल जिससे भी है वो आपको टैक्स पे देना पड़ेगा। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ, मैंने लैपटॉप को 10,000 रुपए में बेचा, 10,000 रुपए में बेचा तो 1,800 रुपए जीएसटी बनता है। पर प्रैक्टिकली मैंने उस लैपटॉप को 2.5 साल यूज करा, 2.5 साल उसको यूज नहीं करा क्योंकि जीएसटी में 5 साल की लाइफ है। 2.5 साल में 10,000 का 5,000 रुपये बनता है, तो 1,800 रुपए जो कि 10,000 रुपए और 5,000 रुपए आईटीसी रिवर्सल जिससे है, यहाँ से मेरे को 5,000 रुपए का जीएसटी का रिवर्सल करना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स देना पड़ेगा आउटपुट सप्लाई के ऊपर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जब 10,000 रुपए का मैंने लैपटॉप बेचा है, तो 5,000 रुपए का मेरे को जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान से देखने की जरूरत है। तो 18 ये बोलता है, अगर मैं रिपीट करता हूँ, कि आपने किसी भी कैपिटल गुड्स जिसका आईटीसी लिया है और आपने उसको किसी वैल्यू में बेचा है, तो उस वैल्यू पे जो भी टैक्स बनता है और आईटीसी रिवर्सल जो भी दोनों में से ज्यादा हो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल में यदि लैपटॉप को मैं 10,000 की जगह 40,000 का बेचता, तो वहां पर क्या होता है, 40,000 पे 18% कितना आता है, 7200 7200 रुपए और आईटीसी रिवर्सल कितना है, 5,000 रुपए। तो जो भी दोनों में से जाता हो 7200 रुपए मेरे को टैक्स देना। तो दिस इज ऑल अबाउट 18 सबसेक्शन 6 कि जब भी मैं कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, एक तरह का ट्रांजेक्शन मैंने डिस्कस किया और मैंने उसका आईटीसी यूटिलाइज कर लिया और उसको मैं किसी कंसिडरेशन में बेच रहा हूँ। अब यहाँ पर हम अब दूसरे तरह का ट्रांजेक्शन किस तरह का होगा, ठीक है। अभी मैंने वो ट्रांजेक्शन की बात करी है जब मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, उसकी आईटीसी यूटिलाइज करी और मैंने किसी कंसिडरेशन में बेचा है, बराबर है। अब दूसरे तरह का एग्जांपल मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने किसी पर्टिकुलर असेट को बिना किसी कंसिडरेशन के बेच दिया। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर एक प्रोविजन है, वो ये बोलता है कि यदि आप किसी ऐसी असेट को जिससे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है और बिना किसी कंसिडरेशन के बेचते हो, तो उसको भी सप्लाई मान लेंगे। तो सेक्शन 7 सप्लाई में हमेशा कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट है, बट
इसको डीम्ड सप्लाई मानते हुए हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन तो कुछ है नहीं। तो अगेन मैंने कितने टाइम के लिए सप्लाई मार्केट, मैंने कितने टाइम के लिए असेट के लिए मैंने असेट के लिए 2.5 साल के लिए, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है तो जीरो, यहाँ पे जीरो टैक्स, तो क्योंकि सप्लाई की वैल्यू जीरो है तो जीरो, और 5,000 रुपये बेचे है। तो ऐसा कोई कैपिटल गुड्स जिसको मैंने बिना किसी कंसिडरेशन के बेचा है, जीरो वैल्यू पे बेचा है और उसका आईटीसी यूटिलाइज कर लिया था, तो प्रपोर्शनल से जितने टाइम के लिए मैंने उसको यूज किया उतने टाइम पे मिलेगा और बाकी का मेरे को रिवर्स करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से बिल सप्लाई मानते हुए मेरे को टैक्स की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इवन इस केस में कंसिडर नहीं होते हुए भी इसको डील से सप्लाई माना गया है, शेड्यूल 1 सेक्शन 7 सप्लाई। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन हम इस तरह का डिस्कस करेंगे। अभी हमने वो ट्रांजेक्शन डिस्कस किया जब मैंने कैपिटल गुड्स का आईटीसी यूटिलाइज कर लिया था, उसको कंसिडरेशन के साथ बेचा, उसको बिना किसी कंसिडरेशन के साथ बेचा, बराबर। अब मैं उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर आपने किसी कैपिटल गुड्स का आईटीसी ही क्लेम नहीं करी। तो आपके मन में सवाल आएगा कि जब 10,000 50,000 रुपये की मैंने कैपिटल गुड्स ली और 10,000 रुपये टैक्स पे किए और 7 से 7,000 रुपये मैंने जब कैपिटलाइज कर लिया, तो यहाँ पर सवाल ही आना चाहिए कि मैं जब बेचूं उसके ऊपर टैक्स पे हो। तो यहाँ पर जब हम लोग इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा कि कैपिटल गुड्स में तो वही आता है ना जिसका मैंने आईटीसी क्लेम करी हो, जिसका मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी हो वो तो कैपिटल गुड्स नहीं है। अगर तो मैंने आपको एक सवाल का आंसर देने की कोशिश करी थी कि यदि कोई ट्रांजेक्शन कैपिटल गुड्स नहीं है तो भी वो गुड्स है, और जब गुड्स की कंडीशन में मैं फॉल हो रहा हूँ, और ऐसा कहीं भी मेरे को नहीं दिखा कि जब यदि मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है और मैं किसी चीज को बेचता हूँ उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो यदि मैं किसी ट्रांजेक्शन को, यदि मैंने 50,000 रुपये का ऐसा गुड्स खरीदा और 10,000 रुपये का आईटीसी क्लेम करी, टोटल 60,000 रुपये मैंने कैपिटलाइज कर दिए। अब इस ट्रांजेक्शन को मैं यदि इस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को यदि मैं 10 रुपये में बेचूं, चाहे 5,000 में बेचूं, चाहे 40,000 में बेचूं, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन वैल्यू पे मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल की बात इसलिए नहीं आती 18 से, क्यों नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे आईटीसी दी नहीं। तो ऐसा कोई गुड्स, कैपिटल गुड्स जिसका मैंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है और उसको मैं बेचता हूँ, और बेचने पर यदि हमारे पे सवाल आता है कि इस पर जीएसटी किस चीज का, आईटीसी तो दी नहीं, तो यहाँ पर हमारी लड़ाई होती है सप्लाई वर्सेस कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में। तो इवन कोई चीज कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आती है और सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। मेरा ये मानना है कि शायद इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे भी टैक्स लगना चाहिए, मेरी पॉसिबल ऐसी है, यदि किसी का डिफरेंस व्यू है तो वी कैन डिस्कस। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और इस ट्रांजेक्शन में हमको यहाँ वो चीज ही देखनी है कि आईटीसी रिवर्स, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यदि मैंने 50,000 की चीज को 10 या 1,000 रुपये में बेचूं, 5,000 में बेचूं, जितने में बेचूंगा ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू एज पर सेक्शन 15 ऑन द टैक्स पे कर देना है। अब आपका एक छोटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि मान लो मैंने कोई कैपिटल गुड्स है, उसको मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने उसका आईटीसी मैंने 60,000 रुपये दी थी, मैंने उसकी क्या जीरो वैल्यू पे निकाल दी, तो क्या कोई टैक्स की लायबिलिटी आएगी क्या? तो बिल्कुल इस केस में टैक्स की लायबिलिटी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब डीम्ड सप्लाई की भी बात करते हैं तो वो ये बोलता था कि आप ऐसी कैपिटल एसेट्स की बात करें जिसका आईटीसी यूटिलाइज हुई हो, बराबर है। तो ऐसी कैपिटल एसेट जहाँ आईटीसी यूटिलाइज हुई वो डीम्ड सप्लाई, यदि किसी कैपिटल एसेट पर आईटीसी भी यूटिलाइज नहीं करी और उसको मैंने ऐसी न्यू वैल्यू पर निकाल दिया, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से वैल्यू जीएसटी पे नहीं होना चाहिए। तो जो सवाल नंबर 4 था कि मैं जनवरी 18 पे 50,000 का लैपटॉप खरीदा, 10,000 का, और उस पर मैंने किसी भी वैल्यू पे उसको इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से मेरा मानना है कि वो जीएसटी नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं मोटर व्हीकल्स की, क्योंकि मैंने अभी तक कैपिटल गुड्स की बात करी, अब कैपिटल गुड्स के साथ में मैं हमेशा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, हो सकता है प्रैक्टिकली वो आप लोग की यूज आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, बट अभी का ये जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये आप लोग के सबसे यूज आने वाली साइंस है, क्योंकि हर साइंस की बुक्स में आप मान के चलिएगा मोटर व्हीकल होती है, कार होती है या किसी बाइक होती है या कुछ भी किसी भी तरह से। वहाँ जब भी वो डीलर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जब भी वो बेचता है तो उसके मन में सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। सवाल इस तरह से जनरली हमारे केस में सारी मोटर कार शुरू में इस तरह की थी कि हमने खरीदी थी जीएसटी से पहले और बेच रहे हैं जीएसटी के बाद में। तो एक सवाल बड़ा, और मोटर कार में तो अगेन वही सवाल आपका आता है कि जब कार का आईटीसी नहीं देता आप लोग 17% लोग, बाइक का आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी मिलती है वो तो बात ही अलग है।
जहाँ आईटीसी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे जो टैक्स की फीस है, तो मैं अगेन वही आपको बता दूं कि आईटीसी नहीं मिलने का रीजन ये नहीं है कि आपको देखने वाले यदि टैक्स ना लगे, सब्जेक्ट टू सम एग्जेम्पशन। तो मोटर व्हीकल के केस में स्पेसिफिकली कुछ नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन से ही हम लोग को चलना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, बराबर है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी क्लाइंट की बुक्स में यदि आपके मोटर में उस व्यापारी की बात नहीं कर रहा हूँ जो जो काम की चीज का करता है मोटर व्हीकल बेचने और खरीदने का, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जिनकी असेट साइड में मोटर व्हीकल कार के नाम से दिखती है, जो कपड़े का व्यापारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं मोटर व्हीकल का, जिनके असेट साइड में मोटर व्हीकल दिखती है, उन पर्टिकुलर बिजनेस हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल आता है कि क्या जीएसटी, फॉर एग्जांपल मैं आम आदमी हूँ, मैंने मेरे पास ओडी थी, बराबर है, और मैंने 1 करोड़ रुपए की ओडी कार खरीदी और मैंने ओडी कार को खरीद के उसको 60 लाख रुपए में रीसेल कर दिया, बराबर है। तो क्या मेरे पे जीएसटी लगेगा क्या? मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं सैलरी क्लास पर्सन हूँ, 60 लाख रुपए की जीएसटी। तो क्योंकि उसका सवाल ये है कि आप बोलते हो ना कि 40 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर है गुड्स का, तो जीएसटी नंबर लेना है। तो इस सवाल का आंसर निकल के आता है बिल्कुल, अब आपको जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हो और सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहे, क्योंकि आपका नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप इस सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहे, आप एक सैलरी पर्सन हो, आपने अपनी भी कार खरीदी थी, उसको रीसेल करी 60 लाख में, इवन टर्नओवर ज्यादा हो, टर्नओवर तो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये तो देखते हैं सप्लाई नहीं, बराबर है। सप्लाई में आपको कोई भी तरह का जीएसटी नंबर नहीं देना। फिर आपका सवाल आता है कि एक व्यापारी था जो व्यापार कर रहा था और उसका टर्नओवर 10-12 लाख रुपए था, और वो उसने कार खरीदी थी और कार उसने बिजनेस पर्पज में वो यूज कर रहा है। तो बिजनेस पर्पज में यूज कर रहा है, और सेम एग्जाम्पल में 1 करोड़ की उड़ी थी और उसने मैंने 40 लाख रुपए की बेची। अब 40 लाख रुपए की जब मैंने वो कार बेची और वो जब वो जो व्यापारी की बुक्स में वो असेट सारी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हम लोग ये नहीं बोल सकते उस पर्टिकुलर केस में कि सर नहीं, ये कार जो है नॉट इन द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट, कहीं ना कहीं वो हमारी बुक्स में आ रही कार, और कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो कार है वो क्योंकि क्योंकि वो बिजनेस की काम भी आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएगा। किस वैल्यू पे होगा, किस रेट पे होगा, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। पर यदि कोई ऐसा व्यापारी जो जिसका टर्नओवर 15 लाख रुपए, उसने अपनी बुक्स में कार दिखा रखी है, बाइक दिखा रखी है, और उसको आपको सेल करता है वो, तो इवन वो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। वो आपके असेट्स में आपने कैपिटल असेट सेल कर दिया, कुछ पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को जीएसटी के दायरे में लाके इसका जीएसटी नंबर अप्लाई करने की नीड पड़ सकती है, बराबर। फिर आपका ग्रेजुएशन सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल है रजिस्टर्ड पर्सन, भाई फिर तीसरा सवाल आता है कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ओल्ड व्हीकल और जीएसटी जो यूज्ड व्हीकल है वो सेल किया, तो नो डाउट आपने व्हीकल सेल करी है, यूज्ड है, असेट्स में आ रही है, नो डाउट जीएसटी के दायरे में ट्रांजेक्शन आता है और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बराबर। फिर चौथा सवाल आता है कि इंडिकेशन दे दो। हाँ, अब देखो ये बड़ा सिंपल सा है कि यदि किसी व्यापारी की बुक्स में कैपिटल यदि कोई मोटर कार आ रही है, तो उसके बेचने पर जीएसटी लगेगा ही लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जीएसटी तो लगेगा। अब जीएसटी में किस वैल्यू पे लगेगा, किस रेट पे लगेगा, कैसे लगेगा, उसकी हम लोग आगे बात कर रहे हैं, बराबर। इवन के आईटीसी यदि आपने क्लेम करी है, तो आईटीसी तो आपको कब मिलेगी? यदि आपने देखा होगा आईटीसी तो यदि मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्रक है, आपने ट्रक को 17/5 में किसी ट्रक के एंट्री ब्लॉक नहीं करती, मूवमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स है, तो वहां पर तो बड़ा सिंपल है कि आपने कोई ट्रक खरीदा, तो अगेन ट्रक खरीदने के बाद में उसको 2.5 साल यूज किया, 2.5 साल फिर आप नॉन रजिस्टर्ड हो गए, तो अगेन जो रूल 43 था वहां पर आप दिखाओगे। तो जहाँ आईटीसी क्लेम करिए वहां तो आप रूल 43 के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को ट्रीट करोगे, कैपिटल गुड्स वहां पे। हम ये वो ट्रांजेक्शन की बात करें, ऐसे व्यापारी जो हमारे क्लाइंट है जो असेट में दिखाया है कार्ड के ऊपर जिसमें आईटीसी क्लेम नहीं करी, बराबर है। तो यहाँ पर ये चीज निकल के आई, एक नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 निकल के आया। सरकार ने बोला कि यदि कोई भी ऐसी कार, कोई भी ऐसी जो आपकी बुक्स में आ रही है, कोई भी मोटर व्हीकल, तो आप उसको बेचते हो, तो स्टार्टिंग में तो कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से जो निकल के आ रहा था कि हम लोग मोटर कार को कितने भी वैल्यू में बेचें, हम लोग को जीएसटी पे करना पड़ेगा, और कार के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी 28% की स्लैब में और सेल्स पे जाऊं तो ओडी और लग्जरी गाड़ी पे तो 22% तक सेल्स है।
तो स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया था तो जो निकल के आया था, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक्स में कार आ रही है, जितनी भी वैल्यू में बेचो आप उसको, आपके ऊपर जीएसटी पे करने वाला है फुल वैल्यू के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जुलाई 17 को 50 लाख की कार खरीदी, उसको कैपिटलाइज कर दिया, अगले महीने बेचने जा रहा हूँ, तो ऐसा हो रहा था 50 लाख का जो इस महीने खरीदा उस महीने में तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर लो, आईटीसी भी नहीं मिलेगा 17 मार्च की वजह से, और अगले महीने बेचता हूँ तो अगले महीने को पूरा का पूरा टैक्स पे देना 50 लाख, डबल टैक्स में हो रहा था। तो सरकार को जब ये चीज समझ कर तो उन्होंने 2 नोटिफिकेशन इशू किए, 8/2018, 9/2018 सीबीएसई आईसीएसई में, और एक नोटिफिकेशन इशू करा देश के लिए। सरकार ने ये बोला कि जहां पर भी आपने कोई भी मोटर व्हीकल का आपने आईटीसी यूज नहीं किया है तो बहुत अच्छी चीज है, आपको हम लोग एक नई टैक्स की रेट प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग को 28% की रेट पे और सेल्स पे नहीं करना है, हम लोग सेल्स के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि यदि कोई भी ऐसी मोटर व्हीकल जिसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं हुआ है तो आपको बेचते टाइम एक तो सेल्स पे नहीं करना, और दूसरा आपको 28% नहीं लगेगा। आपको 2 रेट दे रहे हैं, एक तो 18%, 9% में ऐसे सीबीएसई के, और 6% तो मतलब क्या निकल के आ रहा है कि यदि कोई भी ऐसी मोटर व्हीकल जो आपकी बुक्स में आ रही है और आपने जिसका आईटीसी क्लेम नहीं करी है तो आपको उसके ऊपर बेचते टाइम टैक्स पे करना है 18% की रेट से या 12% की रेट से, और आप कोई भी टैक्स पे नहीं करना। ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लाइंट की यदि आपका कोई क्लाइंट है जो कि जिसके पास मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल वो बेचता है, तो मोटर व्हीकल बेचने पर उसके ऊपर बिल्कुल जीएसटी लगेगा 18% की रेट से या 12% की रेट से। वो किस पे डिपेंड करेगी, ये यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि यदि 12 से ज्यादा है और सीएनजी एलपीजी है तो ऐसा होगा, अदर्स के केस में ये चीज कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 12 और 18 की रेट है, बराबर है। तो बिल्कुल हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी मोटर व्हीकल का कैपिटल जो बैलेंस शीट में आ रही है उसको बेचने से हमको बिल्कुल जीएसटी पे करना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल का आंसर ये निकल जाए कि उसको नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि ग्रैंड आइटम खरीद के आता हूँ तो आज आइटम खरीदने पर मेरे को 28% तो टैक्स लगता है, 2% टैक्स लगता है, पर मेरे को बेचने पे वो नहीं लगेगा। बेचने पर अलग से रेट दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 8/2018 में, या तो 18 या 12, 18 और 12 रेट लगेगी, अगेन टैक्स भी नहीं लगेगा। तो दूसरे सवाल का आंसर निकल जाएगा टैक्स लगेगा, एक नई रेट से लगेगा जो कि या तो 18 हो गया, 12 हो गया, टैक्स भी नहीं लगेगा। चलिए तीसरा सवाल, क्या सेल्स का जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 है। तीसरा सवाल, क्या कोई इस केस में टैक्स जो लगेगा वो ट्रांजेक्शन फुल ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगेगा या उसके लिए कोई वेरिएशन का मैकेनिज्म है? ठीक है, तो इस सवाल का एक आंसर निकल के आता है। देखो मैं इसका एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। सरकार ने ये बोला है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार खरीदी है 1 करोड़ रुपए की, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद में आपकी वो बुक्स में आ गई 40 लाख रुपए की। ध्यान से सुनना, 40 लाख रुपए की बुक्स में आने के बाद में आपने उसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू से कम में बेचा है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, और उससे ज्यादा पे बेचा तो आपको मार्जिन पे टैक्स पे करना है। चलिए मैं इसको अगेन एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करी कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोविजन। तो मोटर व्हीकल जो कि कैपिटल असेट्स में आ रही है तो हमको ये पता चल गया कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और हमको ये पता लग गया कि हमको एक अलग रेट से टैक्स पे करना है जो कि 18% और 12% होगी। तीसरा सवाल ये था कि क्या मैंने कोई 1 करोड़ की कार खरीदी थी और 10 लाख में बेची तो क्या पूरे 10 लाख तक टैक्स पे करना है, या 90 लाख में बेचा पूरे 1 करोड़ पे बेची तो क्या पूरे 1 करोड़ पे टैक्स पे करना है? क्या बिल्कुल नहीं। सरकार ने बोला कि आपको क्या करना है, वो कैपिटल असेट्स की डेप्रिसिएटेड वैल्यू पकड़नी है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई 1 करोड़ रुपए की असेट खरीदी थी और उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू 40 लाख रुपए थी। अगेन डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट एज पर कंपनी। तो हमको इनकम टैक्स एक्ट वाली डेप्रिसिएटेड वैल्यू पकड़नी है, जैसे 15% का डब्ल्यूडीवी में है इनकम टैक्स में। वो फॉर एग्जांपल यदि 50 लाख रुपए आती है 1 करोड़ रुपए की आज की डेट में, और 50 लाख रुपए से यदि कम में बेचते हो आप, ध्यान से सुनना, 50 लाख रुपए से कम में बेचते हो तो कोई तकलीफ नहीं, 50 लाख रुपए से ज्यादा में बेचते हो तो फिर आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे मार्जिन पे टैक्स पे करना है। तो इस एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्ट ने क्या किया, एक मोटर कार 5 नवंबर 2018 को मिली 5 साल की, और उसने कोई आईटीसी क्लेम नहीं किया। उसने क्या करा, वो 5 लाख रुपए की जो 5 नवंबर को 18 कार ली थी उसने 31 मार्च 2020 को वो कार को बेच दी। अब जब मैं इनकम टैक्स में गया देखने तो वहां पे 15% डेप्रिसिएटेड वैल्यू के बाद में 5 नवंबर 18 को पास हुई थी 7.5% शायद, क्योंकि है लेस देन 180 डेज हो रहा होगा, तो हाँ बराबर लेस देन 180 डेज होने की वजह से रेट आगे होगी, और 33,518 का
यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग के 4 से 500 की वैल्यू होगी 31 मार्च 2019 को। फिर मैंने 31 मार्च 20 तक का डेप्रिसिएशन लगाया तो ये वैल्यू निकल गया 3,93,125। अब क्या बोलते हैं यहाँ पे निकाल कि यदि आप यहाँ पर जो है 3,93,125 रुपए की 31 मार्च 20 को ये वैल्यू आई डेप्रिसिएटेड वैल्यू एज पर इनकम टैक्स। यदि आप 3,93,125 रुपए की कार को 2.5 लाख रुपए में बेच देते हो तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने उसको लॉस में बेचा है, मैंने उसको 1,40,000 रुपए के लॉस में बेचा है, तो यहाँ पर हमको इग्नोर करना है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टैक्स में किसी भी तरह का जीएसटी पे नहीं होगा। तो क्या निकल के आता है कि जो भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू से यदि कम में मैं मोटर कार को बेचता हूँ तो उसके ऊपर मेरे को किसी भी तरह का जीएसटी मोटर कार पे नहीं लगता है, और यदि जो भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू से ज्यादा मैं बेचता हूँ तो ओनली मार्जिन पे मेरे को टैक्स देना है। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि जब यदि मैंने 5 लाख रुपए की कार खरीदी तो 5 लाख रुपए की कार खरीदने पर मैं उसको डेप्रिसिएटेड वैल्यू आज की डेट में एक पर इनकम टैक्स 3,04,125 है, उससे कम में बेचता हूँ तो किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना। और यदि मैंने 4 लाख रुपए में बेची है तो मेरे को उस 4 लाख माइनस 3,93,125 जो भी अमाउंट है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे मोटर कार पे 18 और 12% की टैक्स की रेट से जीएसटी पे करना है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर सरकार ने उसी चीज पे टैक्स मांगा है जो प्रैक्टिकली मेरा मार्जिन है, ना कि पूरी वैल्यू पे। जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था शुरू में स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर हमको पूरे अमाउंट पे पूरा टैक्स लगेगा। जैसे यदि मैं शुरू की बात करूँ तो शुरू में ऐसा होता कि यदि मैंने 2.5 लाख में बेची तो 2.5 लाख पे 28% प्लस पूरे अमाउंट पे तो डबल टैक्सेशन होता था। यहाँ पर निकल के आया कि यदि कोई मोटर कार जिसका आपने एलजीसी क्लेम नहीं करा है तो आपको डेप्रिसिएटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। यदि डेप्रिसिएटेड वैल्यू से कम में बेची है तो आपको किसी भी तरह का जीएसटी पे नहीं करना, उससे ज्यादा पे बेची है तो वो मार्जिन से आपको टैक्स पे करना है, वो भी कम रेट है, तो बहुत ज्यादा टैक्स की इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है। एक दूसरे तरीके से ये है कि यदि मान लो किसी में हम लोग ऐसी कोई असेट है जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं लगता हो या फिर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ तो उस केस में किस तरह कंपेरिजन होगा। तो इसी एग्जांपल में यदि डेप्रिसिएशन वाला कोई असेट नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, तो उस केस में क्या होगा 5 लाख से कंपेरिजन होगा सीधा। तो परचेज वैल्यू 5 लाख, यदि किसी में इनकम टैक्स की आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाती है तो परचेज वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। तो हमेशा वो 5 से ऊपर बेचेगा तो ही जीएसटी आएगा, तो 5 से नीचे बेचने पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। ये सेकंड हैंड गुड्स का था, यहाँ पे मैं लेके आया क्योंकि यदि मैं किसी मोटर कार डीलर की बात करूँ तो यहाँ पर शुरू में एक सवाल था कि यदि कोई मोटर कार डीलर जो सेकंड हैंड गुड्स में डीलिंग करता है या फिर कोई भी इंसान जो सेकंड हैंड गुड्स में डीलिंग करता है उस केस में क्या होगा। उस केस में भी रूल 32(5) लिखता है कि लोग इसमें ये था कि जो भी आपको मार्जिन पे टैक्स पे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने 40,000 रुपए की कोई सेकंड हैंड चीज खरीदी और उसको एग्जैक्टली थोड़ा सा रिपेयर करके थोड़ा सा करके 42,000 में बेचा तो आपको 2,000 रुपए के टैक्स पे करना है। तो यदि कोई सेकंड हैंड कार डीलिंग में है तो अगेन वो सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, जैसे एक्सचेंज आपने लिखा होगा और उन्होंने 40,000 वैल्यू खरीदी और 42,000 दे दी तो 2,000 रुपए उनको टैक्स पे करना है। यहाँ का ऐसा नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड से वो लोग खरीदेंगे तो ऑलरेडी वो जिन अनरजिस्टर्ड से खरीदा वो लोग टैक्स पे करके आए रहेंगे। तो सरकार को ये समझ में नहीं कि जब सेकंड हैंड गुड्स में कोई काम करता है तो हमेशा अनरजिस्टर्ड से खरीदता है और वो ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं। सरकार ने बोला जैसे कि आपने जो भी थोड़ा सा उसको ज्यादा पे नहीं किया तो नीचे पे नहीं किया जो भी आपका वैल्यू एडिशन हो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। हमने जो डिस्कशन किया अभी मोटर कार के ऊपर किया कि किस तरह से इस मोटर कार के ऊपर जीएसटी टैक्स पे होगा। तो अब फ्रॉम माय साइड एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा अपने क्वेश्चन के अंदर में बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपका जो भी क्वेरीज है मैं कुछ लोगों की चैट बॉक्स में आएगी तो सौरभ जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप क्वेरी रीड करके बताइएगा तो उसका रिप्लाई कर पाऊँ। एक इम्पोर्टेंट चीज के हमेशा जीएसटी में रहता है कि मैं किस तरह से अपडेट रहूँ, मैं अपने आप को किस तरह से अपडेट रखूँ कि कितने सारे चेंजेस हैं। हो सकता है इवन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मेरे को हमेशा यही लगा था, बार बार यही चेक करने की कोशिश कर रहा था कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए जो पता लगे अपडेट हो गया हो और मेरी नजर से रहना है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको हमेशा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जीएसटी में बहुत सिंपल तरीके से एक जीएसटी की वेबसाइट है www.gstcouncil.gov.in, वहां पर जाके आप जीएसटी में डेली वीकली और मंथली अपडेट
की चीजें मिलती है। तो ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। जब से जीएसटी 1 जुलाई 17 से आया है और आज की डेट तक जो यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर जो वीकली अपडेट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क करके लिखा है, हर वीक में यहाँ पे 1 जुलाई 17 से लेकर आज तक हर वीक के जो भी अपडेट होते हैं वो एक पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे शेयर करते हैं गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा वे है। आप अपना वीडियो साथ 15 में भी दोगे तो सारे जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर जो अलग अलग आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलते हैं वो एक जगह आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपको डेली जैसे अभी आपने देखा होगा किसी के घर में दैनिक भास्कर आता है, किसी के घर में इकोनॉमिक टाइम्स आता है, किसी के टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। तो जिसके टाइम्स ऑफ इंडिया आता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में, या जिससे ईटी आता है वो ईटी में जो न्यूज आई है वो जीएसटी रिलेटेड रीड कर लेता है। जिससे हिंदुस्तान टाइम्स आता है वो एसटी में जो जीएसटी से रिलेटेड न्यूज है वो रीड कर लेता है। बट ये जीएसटी मीडिया जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डेली पे लिखा हुआ है, यहाँ पर जितने भी न्यूज पेपर्स होते हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो पंजाब में हो या आपने ये भी देखा होगा दिल्ली का इकोनॉमिक टाइम्स और जयपुर का इकोनॉमिक टाइम्स से फर्क आता है। तो जितने भी न्यूज पेपर में जितने भी तरह की न्यूज जीएसटी से रिलेटेड आती है वो सब यहाँ पर ऑलमोस्ट अपडेट होती है डेली। तो आपको जैसे डेली भी यदि अपडेट करना है कि जीएसटी में चल क्या रहा है बाहर की, जैसे अभी भार्गव ने स्टार्टिंग में बताया था कि अभी इस तरह के इशूज चल रहे हैं, तो वो सब इशूज आपको बड़े इजीली यदि आप डेली के 5 से 7 मिनट भी लोगे आपको इजीली पता लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताया कि आप किस तरह से जीएसटी में अपडेट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। सौरभ सर, एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। सौरभ म्यूट हो आप। सौरभ जी आप unmute हो। Thank you, Akshay sir, for sharing your views and experience on the topic. And I'm sure this webinar is going to be very useful for us. Sir, कुछ queries जो भी हैं वो अपन ले सकते हैं ना? Akshay sir, आपके chat box में कुछ queries होगी। Actually मुझे वो show नहीं हो रही। एक मिनट ना। आर के बंसल सर जी हैं, उनका भी हैंड रेज है। अगर वो उनकी कोई क्वेरी हो तो वही पूछ सकते हैं। उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ बंसल साहब पूछिए, आपको अनम्यूट कर दिया है हमने। आप एक बार अनम्यूट होकर आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आई थिंक बंसल साहब चैट के ऊपर आई होगी ना सौरभ जी अपने पास में कुछ? सर मेरे पास क्वेरीज नहीं है सर, डायरेक्ट एक्सेस के पास ही है, उनके पर्सनल चैट बॉक्स में है। अक्षय जी है क्या कोई क्वेरी चैट बॉक्स में आपके पास? आप म्यूट पे हो अक्षय जी। अनिल सर, चैट बॉक्स में वो क्वेरी दिख नहीं रही। यदि किसी मेंबर का क्वेरी जैसे आर के बंसल जी ने नहीं किया, आप उनको अनम्यूट कर दो, जो अच्छा रहेगा वही क्वेरी डायरेक्टली पूछते हैं। नहीं वो अनम्यूट तो कर दिया, वो शायद अनम्यूट शो नहीं हो रहा सर उनका भी। अनम्यूट ही शो हो रहा है उनका। चैट बॉक्स में कोई भी क्वेरी नहीं है। अगर मेंबर्स को कोई भी क्वेरी है तो वो ईमेल कर सकते हैं, हम अक्षय सर को भेज के वो क्वेरीज शेयर कर सकते हैं उनके साथ। मैं काम करता हूँ। हाँ सर, क्या क्वेरी शायद मेरे को लग रहा था मैसेज तो आ रहे हैं बट दिख नहीं रहे। अपन ऐसा वी कैन डू वन थिंग कि अगर कोई भी क्वेरी होगी हमारे पास आएगी तो ईमेल करवा देंगे सर। हम आप ईमेल करवा देंगे अक्षय जी आपको ना, फिर अपन रिप्लाई कर देंगे।
मैं मेरा ईमेल आईडी भी एक बार शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पर, तो किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं आपको आज के आज ही रिवर्ट कर दूंगा। तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अक्षय जी को कल को पूछे तो कल भी बता देना, आप ये मत कहो आज ही आज कर दूंगा। नहीं आज ही प्रॉमिस किया था, आज करेंगे। और मैं सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा सुनील सर आपसे भी, कि हमने जो जयपुर ब्रांच में जीएसटी हेल्प डेस्क बना रखी है सर, उसमें हम जो जीएसटी की क्वेरीज का रिप्लाई देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिप्लाई अक्षय ने दिए थे, और अभी लास्ट मंथ के अंदर सबसे ज्यादा रिप्लाई करने पर अक्षय नंबर 1 पे रहा था सर। 15 जो एक्सपर्ट थे पूरे जयपुर के, उसमें सबसे आगे अक्षय रहा। थैंक यू वेरी मच। I think even today's presentation was very nice, and of course he's confident. Even when he skips certain things, he is confident. That is good about a speaker. So he will be in time to come a prolific speaker. Thank you very much. Thank you so much to all the members, and special thanks to CA Sunil Yadav, CA Sunil Bhargav sir, CA Anil Yadav sir, branch chairman Jaipur, Kuldeep Gupta sir, and other committee members for taking the initiative for organizing these type of webinars for enhancing the professional knowledge of members in the COVID-19 pandemic. Thank you very much. Stay home, stay safe, and stay healthy. Thanks. Thank you. Thank you so much sir, Sunil sir. Thank you so much Akshay ji. Thank you so much. Thank you, Anil ji. Thank you sir. Thank you so much.